Okay, I hope my screen is visible. Please confirm. Yes, sir. Yes, Okay, yes. okay, thank you. So, as continuing our previous class, we are actually discussing two major topics. One is ARP, is nothing but Address Resolution Protocol. Another is nothing but ICMP. ICMP stand for what, Manjit? What is the full Uh, form of ICMP? Internet control managing protocol Yes, this is Internet Control Management Protocol. Okay, and management. as I say, SNMP and ICMP both are used for similar kind of technologies or similar kind of management techniques. They both are belongs to management family. That means these protocols are actually doing nothing, just manage our network, nothing else. Okay, just managing our network. Okay, got it? Yes, sir. Okay, so let's continue today's session. So as we are previously going to discuss all these things like introduction to ARP and IECMP, let's just recap the previous session. What is the function of ARP? ARP is doing nothing but mapping the IP address to MAC address. Actually, like DNS. What is the actual goal of DNS? The actual goal of DNS is to map our domain name. Let's say there is domain name called manjeet.com. Okay, whenever we are hitting manjit.com, irrespective to the manjit.com, there is a public IP address which is assigned inside our DNS server will be triggered. So like the same, whenever I am ping someone, let's say I am ping someone or I have the IP address of my destination, but still I am looking for the MAC address of my destination. Why I am looking for the MAC address of my destination? Because whenever we are initiating any kind of traffic, to initiate a traffic or the initial communication required four steps, or you can say the initial setup or the initial communication in between client to client. Let's take an example. There was a client A, there is a client B. You can take also client and server. Okay. Let's say client A is trying to communicate with the client B or client B is trying to communicate with the client A. So what is the minimum requirement to make a successful communication in between client A and client B is they require four address. And what is the address? There are source IP address, destination IP address, source MAC address, destination MAC address. These are the four minimum requirement you have to have with your particular packet so that you can initiate your traffic towards your destination. If you are not having these four addresses, then you can't create a successful communication. Got it, Manjit? Yes, sir. So as I previously already discussed all this topic, like what is the use cases of IP address whenever we are discuss network is not like there are two system, three system or four system. Network means over the internet, over the globe. So over the globe, what is the unique identifier for source? This is the IP address. And whenever we are going to a local area network, what is the unique identifier? The unique identifier is our MAC address. So there are two identifier which we can say there are two unique identifier with me. One is my IP address, one is my MAC address. Got it? Like if you take an example, Aadhaar card. Okay, your Aadhaar card and second one is your passport. Okay, whenever you are inside India, you can uniquely identify by the help of this Aadhaar card. That means Aadhaar is recognized only India. Out of India, there is no Aadhaar card concept. Okay, but whenever you are going abroad or whenever we are going out of India, there is no concept of Aadhaar card, but there is a concept of passport. Over the out of the India, you can uniquely identify or anyone uniquely identify by the help of this passport number. So like the same. Whenever I am inside my local area network, there is a MAC address. Okay, but whenever I am outside my network, there is a IP address. Got it? Yes, sir. Yes. So like the same IP address and MAC address are very important things which you have to consider. After that, what is the ARP we are discussing? That is the normal things happen in ARP, that the mapping between IP address to MAC address, nothing else ARP is doing. Okay. Then second one is the role of ICMP, and this is also one of the very important topic. ICMP. ICMP stand for Internet Control Management Protocol. Inside ICMP, there are lots of commands you can say, but out of that there are two major command you are using in your day-to-day life. There is ping, another one is trashat. These are the two more powerful, or you can say two most important commands you are using or we are using in our day-to-day concept or day-to-day troubleshooting.
But when what is the use case of ping? Ping is actually checking reachability. Is my server is live? Is my server is down? What is the bandwidth or what is the latency? And by the help of this trace route, we can define in which route our source is communicating my destination. Like you can take, there is a source. It is your source. This is your destination. Let's say there is a path one. This is a path one, and this is path two, and this is path three. That means there are three paths, and using the three path, you can communicate towards your destination. That means this is your source, this is your destination. Okay. But whenever your traffic is going from source to destination, there are three route. There is a path one, there is a path two, there is a path three, or you can say there is three router in between source and destination. But in which router or in which path via my traffic is going towards your destination, we can identify by the help of this trace route. If I just go and hit inside the trace route, I am opening my CMD and check trace route and destination IP. It will clearly visible that in which path it will take care by to reach my destination. That means you can say, let's say the path one is going to take for my actual communication. So that is the use case of trace route and ping. Okay, then protocol importance is very much important. Is you are a industry level guy or is you are a network level guy, ARP and ICMP are very much important for you. Why? Because whenever you are stuck in a troubleshooting, you should go to check the ICMP. That means you are initiate a ping command, you are initiate a troubleshoot command. By the help of this, you can identify that my traffic is going to, let's say, DNS. After DNS, my traffic is not forward. You can check all this stuff by the help of this ICMP. And what is the use case of ARP? ARP is actually used whenever you are troubleshooting a LAN environment. Like my ARP request, my MAC address is landing by my core switch or firewall or not. You can check by the help of this ARP protocol. Okay. After that, what is ARP? We have dedicated session all of this. We are discussing all these things today. Okay. What is ARP? ARP is nothing but address resolution protocol. It is doing a very simple concept, or you can say it is doing a very simple concept inside the ARP technology, that it is mapping the IP address to MAC address. ओके ऑल्सो द वाइस वर्सा मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस. जैसे हमने डीएनएस में पढ़ा था, अगर मेरे पास डोमेन नेम है, वी कैन मैप टू आईपी एड्रेस. दैट इज द बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डीएनएस. डीएनएस की बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था? मेरे पास लेट्स से एक डोमेन नेम है, लेट्स से डोमेन नेम है मेरे पास नेटवर्क डॉट को डॉट इन. ओके, कुछ भी ले सकते हो आप, नेटवर्क डॉट को डॉट को इन. जैसे ही मैं इसको जाके मेरी अपनी वेब ब्राउजर में हिट करूंगा, ऑटोमेटिकली बैकएंड में क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर जाएगा. दिट इज द बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ डीएनएस. बट अगर मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, देन वी कैन आल्सो मेक द प्राइवेट, वी कैन आल्सो मैप द डोमेन नेम. लेट आई जस्ट शो यू द एग्जांपल. मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स ओपन. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एनएस लुकअप www.network.co.in. जैसे मैं हिट करूंगा, देयर इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस. देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, देयर इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ डी. तो बेसिकली ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है, दिट इज बाय द हेल्प ऑफ दिस डीएनएस. मुझे डीएनएस बेसिकली क्या कर रहा है, रिजोल्व करके मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस दे रहा है. लेट्स से मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, एंड दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस. अभी मैं ढूंढना चाहता हूँ इस पब्लिक आईपी के एड्रेस के ऊपर कौन सी डोमेन नेम चल रही है. देन ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग. ns lookup 185 151 30 198. If you just hit, there is a network.kin. That means that is showing my server name. This is my server name. Okay, this is my private server name which is showing over here. So you can check all these things by the help of this ns lookup command. Okay, so the same concept is applied in ARP, you can say. Let's say you have the IP address, you are looking towards your MAC address. You can achieve the MAC address by the help of this ARP request. Also the vice versa, you have the MAC address but you are looking for the IP address, you can achieve by the help of this ARP request. Okay. After that, why ARP is needed? As I earlier saw you, why ARP is actually needed, because the initial communication. Whenever we are initiate a communication towards my destination, the four major things are required: my source IP, my destination IP, my source MAC, my destination MAC. Let me just show you in a pictorial representation. If I just go and this is, let's say, source machine. This is my source machine. SM means source machine. Okay, and IP address of this particular machine is 10.0.0.1. And what is the MAC address of this particular machine? MAC address, let's say, a triple A.
Okay, and this is your destination device. Let's say destination machine. DM means destination machine. Okay, and what is the IP address? Let's say IP address 10.0.0.3. And what is the MAC address of this destination machine is B.B.B. That's you can say triple B. And there is a LAN switch in between. So source and destination both are connected to this particular switch. Okay, whenever this particular system or source machine initiated traffic, there was a packet generated, or you can say there was a frame generated. Inside the frame, there is source IP. Source IP is what? Source IP is 10.1. After that, there is a source MAC. Source MAC is what? Triple A. There is just destination IP. What is the destination IP? Destination IP is 10.3. Okay, because you are initiating ping command, right? Inside ping, you have to define the destination 10.0.0.3. From here, it take the destination IP address. Okay, and what is the destination MAC? It don't know. It don't know the destination MAC. So before initiating ICMP communication, if you have not the destination MAC, then automatically there was a ARP request generated, and by default ARP request is broadcast in Reacher. Okay, it will go towards your switch and switch will broadcast the ARP request. That means all the devices which are connected in between inside the switch are getting the ARP request. Okay, but all devices are reject the ARP request. Why? Because the destination IP is 10.3 and these systems IP address may be differ. Okay, that's why these systems are reject the ARP request, but that system which having the destination IP 10.0.0.3 will accept the ARP request and again send a reverse ARP message saying that source IP is 10.3, destination IP is simply 10.1, source MAC is triple B, and destination MAC is simply triple A. Okay, this particular message is going towards your again this particular switch, and this switch now don't do any kind of broadcast because there is a destination IP, there is a destination MAC. That's why it send is in unicast form, because the switch is now known in which port my 10.0.0.1 is located. Okay, now this particular ARP request is received by the help of this ARP request or ARP respond. Okay, that's what that means. Now this particular field will fill up with triple B. Okay, after that the ICMP traffic will be initiated. Let me just show you in pictorial or you can say diagrammatical representation. I hope you will get a better understand on that particular diagram. Okay, as you can see, this guy is sending ping 10.0.10.1.1.3. The first required is RTO. That means which kind of packet is ICMP packet, ICMP request, source IP 10.0.0.1, destination 10.1.1.3, source MAC triple A, destination MAC is unknown. Now it initiate a ARP request. It is looking for 10.1.1.3. The ARP request is broadcast. As you can see, all the ARP request is going towards all destination. These two destinations reject the ARP request because they have no the IP address, and the particular 10.1.1.3 is respond and the MAC address will be received to PC1. Now the MAC address will be filled. Now the ICMP packet will be forward. Okay, that's how the ARP message or ARP protocol is actual work inside our backend network. So that's why you can say ARP and ICMP are the backbone of network. If there is no ARP concept, that means there is no communication will happen. Why? Because as we know, as we discuss, to make an initial communication, we need four addresses: source IP, destination IP, source MAC, destination MAC. But if there is no ARP concept, then how I can know my destination MAC address? So that's why ARP is very much important. Okay. Another one is ICMP. Why ICMP is important? If there is no consider, just imagine there is no ICMP message or ICMP protocol, then how you can identify my server is reachable, how the network monitoring is actually work, and how the entire troubleshoot command is actually work. There is no concept of that kind of things if there is no ICMP. So that's why ICMP or ARP are very much powerful protocol in networking. Whenever you are as a network guy, maybe it's not like you are a L1 guy, L2 guy, or L3 guy, you must know the ARP and ICMP. These two protocol are the backbone of networking. It's not like local network, public network, or wide area network. All networks are use ICMP and ARP. Okay. Then how ARP is how ARP is actually work? ARP have basically four types of messages you can say. One is ARP request. Always remember ARP request is always broadcast. क्योंकि why ARP request is always broadcast? Just because
if whenever you are don't know the MAC address, you are sending the message towards all your destination, all your interfaces. Okay, that's why RF request is always broadcast. Devices send a broadcast RF request to find the MAC address to know an IP address. That means I have the MAC address, I am looking for my IP address, or you can say I have the IP address, I am looking forward my destination MAC address. Okay, for both cases you are sending it in broadcast manner. After that, ARP replay response. That means, as I told you already, let's say you are sending the message, the whenever you are sending the message, this is in broadcast in nature. Okay, after that the message will hit all your destination or all your endpoints. The actual endpoint is receive your message, other than all these endpoints are actually discard your message. Okay, after that this particular endpoint is receiving your message because they have the 10.0.0.3 IP address, and it will now send the message as a unicast form, not in broadcast. That means, as I told you, हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी आप आर्प रिक्वेस्ट भेजते हो, दिस इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर, बट जब आर्प की रेस्पॉन्स आती है आपके तरफ, दिस इज यूनिकास्ट इन नेचर. व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट इज माई डेस्टिनेशन. लेट मी जस्ट क्लियर यू. लेट्स से दिस इज योर स्विच, थोड़ा सा अच्छे से इसे समझना. दिस इज योर स्विच, दिस इज योर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, लेट्स से दिस इज योर सोर्स. ओके, एंड आईपी है 10.1, लेट्स से मैक है ट्रिपल है. Okay, and this is your, let's draw it in different color. This is your destination, this is your destination, this is, you can say, this is your source. Okay, this is your destination. Destination की IP क्या है? 10.2, let's say triple B. Okay, now these cables are connected. Okay, so जैसे let's say this particular system is initiate a ping traffic towards 10.0.0.3. Let me explain in हिंदी. ये जो source वाली system है, ये basically क्या करेगा? पिंग रिक्वेस्ट भेजेगा टूवर्ड्स 10.0.0.2. तो इसने बेसिकली पहला जो कमांड था, इसने किया चला पिंग 10.0.0.2. गुड, अभी तक क्लियर है? सो इसमें जैसे ही ये पिन 10.0.0.2 करेगा, तो पहला ट्रैफिक इसका कौन सा आएगा? पहला ट्रैफिक इज आईसीएमपी ट्रैफिक. हमेशा याद रखना, बहुत सारे इंटरव्यूअर में ट्रिकी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कभी आप पिंग ट्रैफिक इनिशिएट करते हो कोई नई सिस्टम को, सो पहला जो ट्रैफिक इनिशिएट होता है वो कौन सी ट्रैफिक होती है? और बहुत सारे बंदे यहाँ पे कंफ्यूज होकर बोल देते हैं पहले ही आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होता है. नहीं, पहले कभी भी आपकी आर्प रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगा. आर्प रिक्वेस्ट कब जनरेट होगा? आफ्टर आईसीएमपी. व्हाई आफ्टर आईसीएमपी? क्योंकि आईसीएमपी रिक्वेस्ट जैसे ही जनरेट हो जाएगा, आपको पता चलेगा आपके पास आपके इस डेस्टिनेशन की मैक है या नहीं है. सो दैट्स व्हाई first traffic will be initiated as ICMP traffic. After that, if there was no destination available, then ARP request will be generated. But if you have the destination, there is no ARP request will be generated. Okay. So first request जो मेरे जनरेट होगा, this is ICMP request. और ICMP में बेसिकली में क्या रहेगा? मेरी सोर्स आईपी रहेगा which is 10.1, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा which is 10.2, सोर्स मैक रहेगा which is ट्रिपल है. आफ्टर द डेस्टिनेशन मैक मेरे पास क्या रहेगा? व्हिच इज अननोन. डेस्टिनेशन मैक मुझे पता नहीं. जैसे मुझे यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक अभी पता नहीं है, नाउ यहाँ पे क्या मेरी ट्रिगर होगा? आर्प रिक्वेस्ट ट्रिगर होगा. और आप आर्प रिक्वेस्ट क्या होगा? इस पर्टिकुलर इंटरफेस से होते हुए स्विच के तरफ आएगा. और हमें पता है स्विच इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर. स्विच क्या कर सकता है? ब्रॉडकास्ट कर सकता है. स्विच की हर पोर्ट, जितने भी पोर्ट कनेक्टेड होंगे वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है अगर सेम VLAN में. वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ VLAN कॉन्सेप्ट राइट नाउ. ओके, तो स्विच के पास आया, तो स्विच क्या करेगा? अभी स्विच की जितने भी इंटरफेस है, जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है, वो सबके और सबके तरफ क्या भेज देगा? आर्प रिक्वेस्ट जो आया होगा इन ब्रॉडकास्ट इन नेचर, उसे वो ब्रॉडकास्ट कर देगा हर एक सिस्टम के पास. लेट्स से देयर इज अनदर सिस्टम, देयर इज अनदर सिस्टम, सबके पास अभी वो आर्प रिक्वेस्ट जाएगा. क्योंकि ये जो आर्प रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या रहेगा? आपकी सोर्स आईपी रहेगा which is 10.1. डेस्टिनेशन आईपी आपका कुछ नहीं रहेगा क्योंकि आर्प रिक्वेस्ट हो रहा है. दिस इज द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक. डेस्टिनेशन आईपी इज सिंपली 255, यू कैन से 255, 255, 255, एंड हियर यू गो 255. ओके, एंड डेस्टिनेशन सोर्स मैक आपका रहेगा which is ट्रिपल है, एंड डेस्टिनेशन मैक में अगेन ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो एफ 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 एफ. ओके, ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी, एफ 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 एफ, एफ 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 एफ. ओके, सो हमेशा ये चीज भी मैंने पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ. लेयर टू की, लेयर थ्री की जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, दिस इज 255, 255, 255, 255. लेयर थ्री की ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है जो ऑल 255. और लेयर टू की जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहता है, दिस इज एफ 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 एफ, एफ 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 एफ, एफ एफ, FF. Okay, this is layer 2 broadcast address, this is layer 3 broadcast address. Always remember these things. Okay,
लेट मी जस्ट इरेज फर्स्ट। ये लेयर 2 लेयर 3 ब्रॉडकास्ट वाली एड्रेस हमने आईपी पे थोड़ी बहुत इसे डिस्कस किया था। ओके, आफ्टर दैट ये वाली मैसेज बेसिकली क्या होगा, ब्रॉडकास्ट इन नेचर होगा। सो ये पर्टिकुलर सिस्टम, दिस पर्टिकुलर सिस्टम, this particular system will reject the R broadcast message. Why? Because the destination IP is very simple. The destination IP is unknown, you can say, or it is a ARP request. This is a broadcast message. Okay, that's why in broadcast it is looking for 10.0.0.3. Okay, there is a small issue made by me. The destination is simply 10.0.0.2. Sorry guys, the destination is 10.0.0.2. Okay, it is looking for 10.0.0.2 because you know the destination, right? You know the source IP, destination IP, but destination MAC is all FF. Okay, so that's why it is broadcast. Okay, it is going to broadcast, and this particular ARP request is respond by the help of this particular destination device because it have the 10.0.0.2 IP address. And now it have that source IP which is 10.2, it have the destination IP which is 10.1, it have the destination MAC which is triple B, it have the source MAC which is triple A. Okay, so now the destination system have the four parameter to make a communication. So that for that particular region, the respond message is always in unicast in unicast in nature. ओके, एंड स्विच के अंदर भी कुछ चीजें होगा। स्विच के अंदर क्या होगा, जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आपका आएगा, स्विच अपनी मैक एड्रेस में मैक टेबल में एंट्री करेगा। स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। ये स्विचिंग की कॉन्सेप्ट के ऊपर जब पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा मैक टेबल क्या होती है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंड आप समझो, स्विच के अंदर एक टेबल रहता है जिसको स्विच क्या बोलता है, मैक टेबल बोलता है। वो सारे चीज कौन सी इंटरफेस में कौन सी मैक एड्रेस चलता है वो मैनेज करके रखता है। ओके, लेट्स से दिस इज गीगाबिट 0/0, दिस इज 0/1। सो जैसे ही आपके ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक यहाँ पे आएगा, ये जो स्विच आपका होगा मैक टेबल में वो एंट्री कर देगा। क्या एंट्री कर देगा कि गीगाबिट 0/0 इंटरफेस में कौन सी आईपी चल रहा है, 10.0.0.2 चल रहा है। ओके, गॉट इट। सो अभी जैसे ही आपकी यूनिकास्ट मैसेज आएगा, जैसे यूनिकास्ट मैसेज में इस यूनिकास्ट मैसेज को स्विच बेसिकली देखेगा देखेगा उसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.1 है। ओके, दिस इज 1, राइट, दिस इज 1। सो 10.1 बेसिकली मेरी डेस्टिनेशन आईपी है। तो स्विच को पता है 10.1 कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, गीगाबिट 0/0 से कनेक्टेड है। सो ये इसी इंटरफेस में इसे क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। राइट नाउ इट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट। राइट मंजित, समझ में आ रहा है? सर, जो स्विच के पास मैक टेबल है हम्म उसमें 10.2 का मैक एड्रेस भी तो होगा, तो जो उसने 10.1 ने जो उसको रिक्वेस्ट भेजी है, हम्म आईसीएमपी रिक्वेस्ट भेजी है, हम्म। तो उसमें स्विच डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर सकता उसको कि आप अपना वो चेंज कर दो इसमें कौन सा? ब्रॉडकास्ट समझा एड्रेस नहीं की मैं आपकी जगह। बात। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन अगेन? हाँ सर, जैसे 10.1 ने अपना आईसीएमपी मैसेज भेजा स्विच के हम्म पास, लेकिन स्विच के हम्म मैक मैक टेबल में पहले से जो था इसका मैक एड्रेस अपडेट था 10.2 का, हम्म तो हम्म। स्विच उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता बीच में कि वहीं से पहले वह से मैसेज वापस। पहले से नहीं है ना, इसीलिए तो आरप रिक्वेस्ट आपकी जनरेट हो रहा है। स्विच के अच्छा, अंदर अगर कुछ पहले से। नहीं है। या राइट, अगर होगा तो स्विच ही रेस्पॉन्ड कर देगा, अगर नहीं है तो आरप रिक्वेस्ट आपकी जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो ठीक है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, कभी आप कहीं नई नेटवर्क लगा रहे हो या फिर यू आर क्रिएटिंग ए न्यू नेटवर्क स्विच, अगर आप कहीं पे नए नेटवर्क स्विच कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, तो इसीलिए कहा जाता है कम से कम उसे आधे घंटे या फिर 1 घंटा चाहिए पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी मैक टेबल को वो बैकएंड में प्रिपेयर कर रहा होगा, हर एक पोर्ट से कौन सी इंटरफेस है, कौन सी मैक एड्रेस चल रहा है, वो पूरी की अपनी टेबल एंट्री करेगा। आफ्टर दैट इट विल सेंड इन यूनिकास्ट नेचर। सो नॉर्मली जैसे ही आप स्विच को लगा दोगे वो तुरंत यूनिकास्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, हर एक इंटरफेस के ऊपर हर एक डेस्टिनेशन को भेजेगा, उनकी मैक एड्रेस को लाकर टेबल को एंट्री करेगा। सो आफ्टर दैट इट विल टेक द चार्ज आप। बट आउट ऑफ दैट जब तक वो पूरी की पूरी मैक टेबल को नहीं बना लेता, वो ब्रॉडकास्ट इन नेचर रहता है। गॉट इट? ठीक है, एक एक क्वेश्चन और था सर, अगर यस यस। इसकी जगह राउटर होता, सेम डिवाइस स्विच की जगह राउटर होता, तो वो कैसे रिएक्ट करता उस पे, या वो अगर अपनी टेबल लेट मी, पहले यस मेंटेन यस, करके। मैं बता देता हूँ आपको। अपने राउटर की लास्ट टाइम भी बात किया था। लेट्स से दिस इज ए राउटर, ये आपका भी राउटर है एंड दिस इज योर सोर्स।
सेम चीजें हैं, सोर्स की आईपी 10.1 है, डेस्टिनेशन सोर्स में एक ट्रिपल आई है, एंड दिस इज योर लेट्स से डेस्टिनेशन, डी फॉर डेस्टिनेशन, इसकी है 11.1, क्योंकि राउटर की हमें पता है, या फिर राउटिंग कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे, राउटर की हर एक इंटरफेस में अलग अलग सबनेट चलते हैं। ओके, लेट्स से दिस इज द हम्म। डेस्टिनेशन ट्रिपल बी, सो बोथ आर कनेक्टेड टुवर्ड्स योर राउटर। ये सारे किस में कनेक्टेड है, राउटर के साथ। लेट्स से दिस इज 10.10, दिस इज 11.11। ओके, और यहाँ पे है 11.1, यहाँ पे है 10.1। राउटर के हर एक इंटरफेस में आपको आईपी देना है, मैंडेटरी है। ओके, सो ये लेट से अभी पिंग पैकेट इसने इनिशिएट किया, पिंग 11.0.0.11। ओके, सो सिंपली इसके पास हम्म। पहले पैकेट कौन सी जनरेट होगा, आईसीएमपी पैकेट विच इज हैविंग सोर्स आईपी 10.0.0.10, and source MAC is very simple triple A because we have 9 local things. Okay, after that destination IP is 11.0.0.11. In your case there may be in other, this may be other IP. Okay, destination MAC is unknown. सेम थिंग यहाँ पे भी मेरे पास हम्म। डेस्टिनेशन मैक नहीं है, सो यहाँ पे जैसे ही डेस्टिनेशन मैक इसे नहीं मिलेगा, इट विल ट्रिगर है आर्प रिक्वेस्ट, ये आर्प रिक्वेस्ट फिर से ट्रिगर कर देगा। सो सिंपली सिस्टम से आपकी आर्प हम्म। रिक्वेस्ट गया टूवर्ड्स योर राउटर, और राउटर के पास जैसे ही आर्प रिक्वेस्ट पहुंचा, आर्प रिक्वेस्ट की नेचर क्या रहती है, इट इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर, और राउटर के हम्म। अंदर जो पूरी प्रोसेस चलती है, दिस इज नॉट बाईपास द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, दैट मीन राउटर की अगर कोई इंटरफेस में उसे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक लान हो रहा है, तो राउटर उसे आगे आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वहीं पे बंद कर देगा। मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा। ओके, लेकिन स्विच होता तो हम्म। अच्छे से चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये राउटर है, सो आपका यहाँ क्या होगा, आर्प रिक्वेस्ट जो ब्रॉडकास्ट इन नेचर है वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। देन हाउ आई कैन नो माई डेस्टिनेशन मैक, सो यहाँ पे मुझे डेस्टिनेशन मैक फिर पता कैसे चलेगी। सो इन दैट केस हम्म। राउटर आपको क्या बोलेगा, ठीक है मैं तेरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को तो बेसिकली ड्रॉप कर दिया, लेकिन मैं तुझे मैक एड्रेस दूंगा, क्या दूंगा, राउटर की जो यहाँ पे इंटरफेस की, राउटर की या फिर स्विच कह लो, आपकी L2 स्विचेस हो गया, आपके राउटर हो गया, हर एक पोर्ट में मैक एड्रेस होता है। ओके, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन राउटर लेट्स से राउटर की ये जो इंटरफेस है, इट इज गीगाबिट 0/0, एंड दिस इज गीगाबिट हम्म। 0/1। राउटर की इस पर्टिकुलर पोर्ट में जो मैक एड्रेस होगा, लेट्स से दिस इज F10 F। ओके, ये मैक एड्रेस वो इसको भेज देगा। ओके, अभी इसके पास डेस्टिनेशन में क्या आ गया, F10F, ये मैक एड्रेस अभी आ गया। अभी इसकी चारों फील्ड कंप्लीट हो गए, ये अभी मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे भेज देगा। जैसे ही अभी राउटर के पास जाके वो मैसेज पहुंचेगा, राउटर सबसे पहले देखेगा डेस्टिनेशन आईपी कौन है, डेस्टिनेशन आईपी 11.1 है, सो राउटर अभी अपना राउटिंग टेबल देखेगा। राउटिंग टेबल के अंदर उसे मिल जाएगा, अच्छा ये जो 11.11 है, ये तो मेरी लोकल इंटरफेस है, हुई चीज इनसाइड माई गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड है, सो अभी ट्रैफिक वो यहाँ भेज देगा। गॉट इट। हम्म। सो इसकी ठीक है। पूरी वो प्रोसेस अपना मैं आपको अपने दिखाऊंगा। पोर्ट का जो है यस मैक एड्रेस यस, डाल के उसको आगे भेज देगा, ठीक है सर। राइट। हम्म। ओके, सो आर्प अरे। बेसिकली आर्प के अंदर कुछ चीजें होती है, विच इज आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट हमेशा याद रखना, आर्प रिक्वेस्ट इन ब्रॉडकास्टिंग नेचर। आर्प के लिए मैं आपको एक चीज बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देके बोलूंगा, हमेशा याद रखना, हमें बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए 4 पैरामीटर चाहिए, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, एंड कभी भी आप इनिशियल कम्युनिकेशन करते हो कोई भी सिस्टम के साथ, पहले आपकी आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होता है। अगर आपके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं है, देन आप आर्प रिक्वेस्ट को ट्रिगर करते हो, अदरवाइज यू आर नॉट ट्रिगरिंग द आर्प रिक्वेस्ट। ओके, उसके बाद आपके पास आती है आर्प रिप्ले और रेस्पॉन्स, जो आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भेजता है। आफ्टर दैट आर्प कैश है और स्टोरेज यू कैन से, जैसे यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जैसे हमारे पास डीएनए की कैशे होती है, हमारे पास होते हैं ना डीएनएस की कैशे मेमोरी। डीएनएस की हमारी लोकल सिस्टम, जो हमारी लैपटॉप मोबाइल, इनके अंदर भी कुछ कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी इन द सेंस, जो चीजें जो सर्विसेज को मैं बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, उनकी आईपी एड्रेस, उनकी मैक एड्रेस क्या रहती है, मेरी एक लोकल कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और यू कैन से कुकीज, जो हमें ब्राउजर में कुकीज मिलते हैं, मतलब ब्राउजर में हमें कैशे मेमोरी मिलती है, सो लाइक द सेम डीएनएस की कैशे मेमोरी होती है। ओके, इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे आप दिन में आप यूज करो, या फिर आपके आस पड़ोस में बंदे क्या करते हैं, फेसबुक को एक्सेस करते ही करते हैं, सो आप हर टाइम क्या करते हो, फेसबुक से डीएनएस लुकअप नहीं करते। जैसे आपने facebook.com को हिट किया, आप लुकअप नहीं करते बार बार, क्यों, क्योंकि हर चौथा बंदा फेसबुक यूज करता है, आपकी डीएनएस के पास, आपकी लोकल डीएनएस के पास फेसबुक की आईपी एड्रेस रहता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर दूसरा बंदा उसे यूज करता है। सो लाइक द सेम, जैसे आपकी यहाँ पे स्विच है, ये आप कम्युनिकेशन कर रहे हो,
लेट्स से यू आर कम्युनिकेटिंग, आप कम्युनिकेशन अभी कर रहे हो, आपके सिस्टम के अंदर भी आर्फ कैशे स्टोर कर लेता है। आर्फ कैसे कैसे स्टोर करता है, आप जैसे हर एक आईपी को, लेट्स से आपके पास आईपी एक है विच इज 10.1, आप लगातार 10.1 से कम्युनिकेशन कर रहे हो, हर 5 मिनट में, हर एक दिन में और हर एक 24 घंटे में आप 10.1 को पिंग कर रहे हो। सो वो बार बार आर्प रिक्वेस्ट को इनिशिएट नहीं करेगा, मीनवाइल वो क्या करेगा, आर्प के रिक्वेस्ट की मदद से जो उससे मैं आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस जो वो लैंड करेगा ना, वो आपके सिस्टम के अंदर ही वो स्टोर कर देगा फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर के लिए स्टोर करेगा, इसकी एक पर्टिकुलर टाइम होती है, 24 आवर होती है, वो 24 आवर के लिए इसे स्टोर कर देता है। अगर आप देखना चाहो, अगर आप विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, सर्वर को रीस्टार्ट करते हो, देन दैट पर्टिकुलर मेमोरी विल बी लॉस्ट। ओके, अगर आप यहाँ पे जाके आर पे करोगे, देखो अभी के लिए, ओके, ये मैक एड्रेस मुझे लैन हो रहे हैं। ओके, ये पर्टिकुलर आईपीज है जो मेरी सर्वर, कुछ लोकल सर्वर है, कुछ वीएम बेस्ड सर्वर है जिसको हमने पिंग करते हैं रेगुलर बेसिस में, हम एक्सेस करते हैं, लाइक दिस इज 192.168.1.255, दिस इज एफ दैट मीन दिस इज नथिंग बट योर आर्प रिक्वेस्ट, ये आर्प रिक्वेस्ट है, ये आर्प रिक्वेस्ट है, दिस इज योर आर्प रिक्वेस्ट एंड दिस इज माय पर्टिकुलर एलएमएस, आप जिस एलएमएस से पढ़ते हो, दिस इज द सर्वर आईपी एड्रेस। ये सारा आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है, हम डे टू डे में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज स्टोर इनसाइड माय लोकल कैशे मेमोरी। और इस टाइप की कैशे मेमोरी को हम क्या कहते हैं टेक्निकली, दिस इज नथिंग बट आर्प कैशे मेमोरी। ओके, और अगर जहां पे आपको डेस्टिनेशन में सारे चीजें एफ दिख रही है, दैट्स मीन दिस इज द आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट माय बाय सिस्टम। ओके, सो लाइक द सेम यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज होती है, दिस इज नथिंग बट आर्फ कैशे मेमोरी, रिक्वेस्टिंग डिवाइस स्टोर द मैक एड्रेस इन इट्स आर्फ कैशे, ऑप्टिमाइज फर्दर कम्युनिकेशन। अभी आप सोचो, हर बार जैसे ही आप घर से निकलते हो, आप पूरी रोड जाके चेक करते हो कि सब कुछ रोड पे सही है या नहीं है, आफ्टर दैट आप क्या करते हो, अपनी बाइक चलाना शुरू करते हो, हमेशा आप ये करते हो। लेकिन उसके बिहाफ में अगर कोई बंदा आपको बोल दे सर सब कुछ रास्ता बिल्कुल बढ़िया है, आप गाड़ी लेके आ सकते हो, तो कितना आसान हो जाए। सो लाइक द सेम, आरएफ रिक्वेस्ट क्या करता है, हमेशा आपको लुकअप करने से बचाता है। कोई भी आप इनिशिएट करते हो, जैसे आज मैंने अभी लेट से फेसबुक को एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने फेसबुक को एक्सेस किया और फेसबुक को मैंने बंद कर दिया, फिर 2 मिनट के बाद जैसे मैं फेसबुक को एक्सेस करूंगा, फिर से डीएनएस प्रोसेस शुरू होगा बैकएंड में। सो इट इज टेकिंग लिटिल बिट टाइम, टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ लिटिल बिट टाइम और आर्प रिक्वेस्ट टाइम, वी आर यूजिंग आर्प कैशे मेमोरी। हम अपनी लोकल डेटाबेस एक हमारी सिस्टम में, हमारे राउटर में, हमारी स्विच में एक लोकल डेटाबेस मेंटेन कर देते हैं, जिसके अंदर जिस मैक एड्रेस को हम फ्रीक्वेंटली और जिस आईपी एड्रेस को हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं, उनके बिहाफ में पूरी डेटा को हम अपनी लोकल कैशे मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। सो इट इज ऑप्टिमाइज और फ्यूचर कम्युनिकेशन। अगर फ्यूचर में आप कम्युनिकेशन करना चाहो, आप डीएनएस के पास फिर से नहीं जाओगे, आपकी पूरी आईपी एड्रेस मेरी लोकल कैशे में पड़ा हुआ है, वहां से आप लुकअप कर सकते हो। सो लाइक द सेम, कभी आपकी फ्यूचर में अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, यू आर नॉट डूइंग द आर्प रिक्वेस्ट अगेन, अब फिर से ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, वहां से यूनिकास्ट मैसेज नहीं आएगा, पूरी प्रोसेस मत करो, क्योंकि लोकल में ही पड़ा हुआ है आपकी मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। गॉट इट मंजित? यस सर। ओके, सो टाइप्स ऑफ आर्प मैसेज, देखो आर्प्स की कुछ टाइप्स भी होती है, लाइक द सेम रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ आर्प रिक्वेस्ट। लाइक रिक्वेस्ट हमें पता है, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट इन नेचर, ब्रॉडकास्ट इन नेचर। आर्प रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या होता है, वी आर हैविंग वन पैरामीटर एंड वी आर लुकिंग आवर डेस्टिनेशन पैरामीटर, मेरे पास मेरी डेस्टिनेशन की एक पैरामीटर है, वो एक पैरामीटर क्या हो सकती है, मेरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो सकता है, मेरी डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बिहाफ में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी डेस्टिनेशन की दूसरी एक पैरामीटर को मैं ढूंढ रहा हूँ, लाइक मेरे पास डेस्टिनेशन की आईपी है, मैं डेस्टिनेशन की मैक ढूंढ रहा हूँ, और यू कैन से मेरे पास मेरी डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस है, वी आर लुकिंग फॉर द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सो लाइक द सेम, we are always having one parameter, okay, and based on that particular parameter we are looking forward to the different parameter. Okay, so ARP request function, a ARP request is a broadcast asking for the MAC address links to the known IP address of the network। आईपी एड्रेस आपके पास है और आप नेटवर्क में जाके पूछ रहे हो कि भाई मुझे मैक एड्रेस बताओ, और पूरी नेटवर्क में जाके पूछ रहे हो, पूरी नेटवर्क में पूछ रहे हो, दैट्स मीन दिस इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर। After that, ARP replay function. ARP replay is sent by the device owning the IP address provides MAC address on response। और ARP response हमेशा ARP response भी कहा जाता है उसे, और ARP replay भी कहा जाता है। दिस इज यूनिकास्ट इन नेचर, मतलब मेरे पास बेसिकली क्या था, मेरे पास मंजित का फोन नंबर था। सो इस फोन नंबर को लेके मैं पूरी की पूरी देहरादून में घूम रहा हूँ कि इस फोन नंबर के रिलेटेड कौन है, बंदा का नाम क्या है। सो जैसे मैं पूरी देहरादून में मैं पूछ रहा हूँ, दैट्स मींस आई एम ब्रॉडकास्टिंग। और जैसे ही मैं मंजित के पास जाके पहुंच गया, मंजित बोला सर ये तो मेरा मोबाइल नंबर है, तो अभी मंजित ने मुझे 1 to 1 बोला। सो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिकास्ट इन नेचर। सो हमेशा याद रखना, हमेशा
आर्प की जो रिक्वेस्ट रहती है, दिस इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर, दिस इज ब्रॉडकास्ट इन नेचर, बट आर्प की जो रिप्ले और यू कैन से रेस्पॉन्स रहती है, दिस इज यूनिकास्ट इन नेचर, बिकॉज यूनिकास्ट तभी होता है व्हेन एवर यू आर हैविंग द फोर पैरामीटर, जब आपके पास चार पैरामीटर हो जाएंगे, दैट मीन सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, यू आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ यूनिकास्ट। जब तक आपके पास है नहीं, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड यार ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मैसेज की मदद से आप ढूंढते रहोगे उस एड्रेस को। आफ्टर दैट प्रोपोज ऑफ आर्प एक्सचेंज, आर्प बेसिकली जो इनिशिएट होता है उसका मीनिंग क्या रहती है, क्यों मैं आर्प को इनिशिएट करूं, दिस रिक्वेस्ट रिप्ले एक्सचेंज एनेबलिंग डिवाइस टू सेम नेटवर्क टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली मेक एड्रेस। बेसिकली अगर मेरे पास आर्प रिक्वेस्ट नहीं रहेगा, देन इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू मेक ए एक्चुअल कम्युनिकेशन। ओके, जैसा हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, लेट से मेरे पास इंटरनेट के ऊपर मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे हो रहा हूँ, बाय द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस, ओवर द इंटरनेट मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, आईपी एड्रेस। ओके, लेकिन जैसे मैं किसी की नेटवर्क के अंदर घुस रहा हूँ, लेट्स से दिस इज इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर तो मुझे आईपी एड्रेस की मदद से मैं यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा हूँ, लेकिन जब कभी मैं किसी की नेटवर्क के अंदर घुसूंगा, देन हाउ कैन आई आइडेंटिफाई द एक्चुअल होस्ट, मुझे किस सिस्टम में डाटा को डिलीवर करना है वो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल बाय द विदाउट द हेल्प ऑफ आर, क्योंकि आरपी आपको बताएगा ये जो आईपी एड्रेस आप लेके आ रहे हो, इसके बिहाफ में ए में एक एड्रेस चल रहा है यहाँ पे, इसमें लेके आप डाटा डिलीवर करो। सो लाइक द सेम, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, लेट से आपकी जो ऑफर लेटर है, आपको ऑफर लेटर मिला है होंडा से, और यू कैन से होंडा ले लो, आईबीएम ले लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर आईबीएम। मैं कह रहा हूँ आपको जो ऑफर लेटर मिला है, मंजीत को एक ऑफर लेटर मिला है, दिस इज आईबीएम कंपनी से वो ऑफर लेटर मिला हुआ है, लेकिन उस ऑफर लेटर के ऊपर आईबीएम कंपनी की एक्चुअल एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, मतलब मंजीत को कहाँ पे रिपोर्टिंग करना है वो एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मंजीत को इतना पता है, आईबीएम जो है पूरी इंडिया में उसकी 5-10 कंपनी है, सो मंजीत अभी जाए तो जाए कहाँ। सो मंजित के पास आईबीएम की ऑफर लेटर है, व्हिच इज एक्ट एज ए आईपी एड्रेस, मंजित के पास आईपी एड्रेस तो आ गया, लेकिन मंजित अब उस आईपी एड्रेस को लेके या फिर उस ऑफर लेटर को लेके कहाँ पे जाए, रिपोर्टिंग कहाँ पे करनी है, कौन सी जगह पे जानी है, मंजित इज नॉट नोन अबाउट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। सो वो आईपी एड्रेस, और जो आईपी एड्रेस के बिहाफ में आप क्या कर सकते हो, यू कैन से उस ऑफर लेटर के बिहाफ में आप क्या कर सकते हो, आईबीएम टीम को कॉल करके पूछ सकते हो, मुझे एक ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, मुझे कहाँ रिपोर्टिंग करना है बताओ। अगर आपके पास ऑफर लेटर ही नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे कि मेरे पास एक ऑफर लेटर कुछ आया ही नहीं है, लेकिन मुझे बताओ कहाँ रिक्वेस्ट और यू कैन से रिपोर्टिंग करनी है। सो ये जो ऑफर लेटर है, दिस इज लाइक योर आईपी एड्रेस, जो आपको पूरी आईबीएम में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, हाँ इस बंदे के पास ऑफर लेटर है, दैट्स मीन्स दिस बंदा इज ऑथराइज टू रिपोर्ट इन ए साइट, और वो साइट की एड्रेस जो है, दिस इज योर मैक एड्रेस, मैक एड्रेस आपको हमेशा लोकली यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन आईपी जो है, दिस इज यूनिकली आइडेंटिफाई ओवर द इंटरनेट और ओवर द पब्लिक नेटवर्क, यू कैन से। आफ्टर दैट व्हाट इज आईसीएमपी, बोथ आर जस्ट कंबाइन ऑफ दिस थिंग, लाइक आईसीएमपी है तो आर पे है, तो आर पे है तो आईसीएमपी है, आईसीएमपी के पीछे आर्प चलता है और आर्प के पीछे आईसीएमपी चलता है, दोनों को रिलेटेड है। आप आईसीएमपी को भूल जाओगे तो आर्प रिक्वेस्ट नहीं जनरेट हो पाएगा, क्योंकि आईसीएमपी अगर आप इनिशिएट ही नहीं करोगे, देन आर्प की कॉन्सेप्ट भी वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि आईसीएमपी की मदद से मुझे पता चल रहा है मेरे पास मेरी डेस्टिनेशन आईपी है या नहीं है, डेस्टिनेशन मैक है या नहीं है, अगर नहीं है देन मैं आर्प की तरफ जाऊंगा, अगर आरपी नहीं है देन मुझे आईसीएमपी भी कोई मतलब नहीं है। ओके, सो बोथ आर जस्ट इंटरकनेक्टेड, आरप एंड आईसीएमपी बोथ आर जस्ट इंटरकनेक्टेड, और यू कैन से बैकबोन ऑफ नेटवर्किंग। आफ्टर दैट डेफिनेशन एंड एनालॉजी, प्रोपोज ऑफ आईसीएमपी, आईसीएमपी का बेसिकली मतलब क्या है, आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इज यूज्ड टू सेंड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन विद इन ए नेटवर्क विदाउट कैरिंग ऑपरेशन एप्लीकेशन डेटा। अब इसका सिंपल सा मतलब लेके समझो, जैसे आप किसी को पिंग मैसेज भेजते हो, पिंग के बहुत सारे कंडीशन होते हैं, आपने भी देखा होगा, किसी किसी कभी कभी आप पिंग करते हो, आपको वहां पे टीटीएल लिखा हुआ आता है, दैट्स मीन्स आप क्या सोचते हो, पिंग मेरी रीचेबिलिटी बन रहा है। अगर आपको टीटीएल वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे पूरी वैल्यू लिख के आ रहा है, दैट्स मीन्स लेट मी जस्ट शो यू, लेट्स से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, आई एम हिटिंग पिंग 8.8.8, जब कभी आप इस टाइप की मैसेज देखते हो, आप क्या सोचते हो, दैट मीन आई एम रीचेबल टू माई डेस्टिनेशन, मैं डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहा हूँ। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आईसीएमपी, दिस पर्टिकुलर मैसेज, आईसीएमपी की मदद से बेसिकली ये जो डेटा मुझे मिल रही है, दिस डेटा डेटा इज रिसीव्ड बाय द हेल्प ऑफ द आईसीएमपी। ओके, दिस इज ए इंफॉर्मेशनल मैसेज, मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम जिस डेस्टिनेशन को 8.8.8 को पिंग कर रहे हो, मैं वहां तक रीच कर पा रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट लेट्स मैं यहाँ पे पिंग करूंगा, पिंग 1.1.1.1, 1.1.1.1 is having no IP address, okay, this is the
Cloudflare IP address. Let's say you are having 2.2.2.2 and 2.2.2.2 there is no IP address over the internet, and कोई IP address है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या मैसेज मिलेगा? RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब क्या है? रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब सिंपल सा है, इसको कभी कभी हम आरटीओ भी बोलते हैं। जब कभी आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट मिले, इसका दो ही मेजर कारण हो सकता है। एक है आपके सिस्टम डाउन हो सकता है, सिस्टम डाउन हो सकता है। दूसरा, सिस्टम आपकी अप है बट आप रीच नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम पॉलिसी। आपने बहुत बार देखा होगा कि मेरे सिस्टम तो है, सिस्टम तो लाइव चल रहा है, मॉनिटरिंग में सिस्टम लाइव आ रहा है, लेकिन जैसे मैं सिस्टम से पिंग कर रहा हूँ सेम नेटवर्क में, मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम पॉलिसी इनसाइड माय फायरवॉल, इनसाइड माय राउटर। सो आरटीओ का मतलब नॉर्मली दो होते हैं, आपकी सिस्टम डाउन है, दूसरा क्या हो सकता है, आपकी सिस्टम अप है लेकिन देयर इज सम पॉलिसी, for that we have a policy, I am not able to but no, I am not able to reach that particular system. So RTO is nothing but it is a error message। ये ICMP की कौन सी मैसेज है? दिस इज एरर मैसेज। इसके इस एरर मैसेज की मदद से मैं क्या जान पा रहा हूँ? दैट मीन दिस आईपी एड्रेस इज एग्जिस्ट इन माय नेटवर्क। ये जो आईपी एड्रेस 2.2.2 को मैं पिंग कर रहा हूँ, दिस इज एग्जिस्ट, ये आईपी एड्रेस अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, बट आई एम नॉट एबल टू पिंग ड्यू टू टू रीजंस। मैं भी हो सकता है ये आईपी एड्रेस जिस सर्वर जिस सिस्टम को दिया गया हुआ है, वो सिस्टम वो सर्वर अभी डाउन है, या फिर इस आईपी एड्रेस जिस सिस्टम जिस सर्वर को दे रहा हूँ मैं उसे रीच नहीं कर पा रहा हूँ। रीच किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ? मैं भी मैं भी देयर इज सम पॉलिसी, मैं भी देयर इज सम पॉलिसी हो सकती है। नॉर्मली अगर बात करूँ, ये वाली बहुत सारे इश्यूज आते हैं हमारे जितने भी अभी L1 गाइज हैं जिन्होंने नेटवर्कर से बेसिकली कोर्स लेके गए हुए हैं, वो नॉर्मली ये वाली क्वेश्चन हमें पूछते रहते हैं कि सर मेरी सिस्टम मुझे मॉनिटरिंग में, मेरी व्हाट्सएप गोल्ड, मेरी पीआरटीजी, या फिर मेरी जो एक्चुअल प्रोफाइल है, या फिर मैं जब साइट पे जाता हूँ साइट में वो सिस्टम मुझे अवेलेबल दिखाता है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है उस सिस्टम पे, लेकिन जब मैं सेम नेटवर्क में होते हुए भी उस सिस्टम को पिंग करता हूँ, देन मैं उसे पिंग नहीं कर पा रहा हूँ। सर क्या रीजन हो सकती है? सो देयर इज ए वेरी सिंपल रीजन, देयर इज सम पॉलिसी। वो पॉलिसी कहाँ कहाँ बन सकता है? आपके राउटर में बन सकता है, आपकी फायरवॉल में बन सकता है, और यू कैन से फायरवॉल में बन सकता है, आपकी स्विच में बन सकता है, आपकी सिस्टम में भी बन सकता है, क्योंकि हमें पता है हमारे सिस्टम में भी एक एंटीवायरस आता है विच इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर। सो डिफेंडर के अंदर अगर आपने कुछ पॉलिसी बना रखा है, स्टैंड अलोन पॉलिसी, तभी भी आपको वो सिस्टम रीच नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे आईसीएमपी को ब्लॉक कर दिया होगा। अगर आप आईसीएमपी को ब्लॉक कर दोगे, यू कांट रीच दैट पर्टिकुलर सिस्टम। सो देर आर मल्टीपल रीजंस। सो हमेशा याद रखना, जो आपको टीटीएल वैल्यू देता है, दिस इज ए इंफॉर्मेशनल वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ आईसीएमपी यू आर रिसीविंग, एंड आरटीओ जो होता है दिस इज नथिंग बट इज एरर मैसेज। एंड दूसरी एक एरर मैसेज होता है विच इज नथिंग बट योर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये वाली भी आपने बहुत बार देखा होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका सिंपल सा मतलब होता है सिस्टम डाउन है, फिक्स ही होता है इसका, सिस्टम डाउन है। ओके, इसमें तो दो केस हो सकते हैं, सिस्टम डाउन भी हो सकता है, मैं भी सिस्टम लाइव है लेकिन पॉलिसी लगा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर सिस्टम। लेकिन जब कभी आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिल रहा है, दैट मीन दैट सिस्टम इज डाउन, ये सिस्टम आपका डाउन ही है। ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे आप लिंक को मॉनिटर कर रहे हो, लाइक आप एयरटेल लिंक, वोडाफोन लिंक और इवन से टाटा लिंक को मॉनिटर कर रहे हो। जैसे ही फाइबर आपका कट हो जाएगा और इवन से राउटर आपका बैठ जाएगा, आपको देखना वहां पर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल देगा। ओके, यस सर। आफ्टर दैट पिंग कमांड एग्जांपल्स। ओके, पिंग कमांड्स की एग्जांपल्स क्या होती है? द पिंग कमांड यूज आईसीएमपी टू टेस्ट डिवाइस रीचेबिलिटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। देखो, नेटवर्क इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा जो यू कैन से क्या कह सकते हो आप उसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट जो कमांड है, दिस इज योर पिंग कमांड। कोई भी नेटवर्क इंजीनियर को कुछ आए ना आए, वो पहले ही जाके दो चार पिंग कमांड लगा के दिखा देगा, देखो मैंने ब्लैक स्क्रीन खोल के पिंग लगा दिया, मैं रीचेबल कर रहा हूँ। रीचेबिलिटी इन द सेंस, मैं उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं पता लगाता हूँ बाय द हेल्प ऑफ दिस पिंग। एंड पिंग की बैकबोन में जो काम करता है, दिस इज योर आईसीएमपी। So ICMP is the master who create ping। बेसिकली आईसीएमपी वो मास्टर है जिसने पिंग को क्रिएट किया है। सो हमेशा याद रखना, आपको नेटवर्क की रीचेबिलिटी चेक करनी है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करनी है, यू कैन गो विथ पिंग। नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हो? क्योंकि पिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा, नीचे लिखा हुआ आएगा मैक्सिमम लेटेंसी कितनी है, मिनिमम लेटेंसी कितनी है, और एवरेज लेटेंसी कितनी है। लेटेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन नेटवर्किंग। ओके, आफ्टर दैट
postal service analog. So this is nothing but is the example just ICMP work like postal notification confirming. जैसे इसकी अगर एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे आप किसी को मेल करते हो और यू कैन से आप किसी को व्हाट्सएप में मैसेज करते हो। व्हाट्सएप में पहले क्या आता है हमारे पास, जैसे लेट से व्हाट्सएप में मेरे पास मैंने किसी को अभी मैसेज किया, दिस इज ए गुड एग्जांपल बाय द वे। लेट से व्हाट्सएप में मैंने अभी मंजीत को मैसेज किया, लेट से मैंने मंजीत को हाय मैसेज किया, तो वहां पे क्या आता है, टिक करके एक मैसेज आता है। अगर सिंगल टिक आ रहा है और वो टिक किस कलर की आ रही है, ब्राउन कलर की आ रही है, लाइक लेट्स से यू कैन से दिस टिक, जो ये जो टिक आ रहा है दिस इज इन ब्राउन कलर। ओके, और यू कैन से दिस टिक इज नॉट एनी कलर, दिस इज अ सिंगल कलर। और लेट मी जस्ट शो यू, लेट्स से मैंने मंजीत को हाय भेजा और इस हाय के साइड में कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मल ऐसे वन टिक आ रहा है। सो इसका इसका मतलब हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, मैसेज मेरे साइड से सेंड हो गया है लेकिन मंजीत की इंटरनेट अभी ऑफ है, दैट्स व्हाई मंजीत इज नॉट रिसीविंग द मैसेज। ओके, सिंगल टिक का मतलब ये होता है। लेकिन जब कभी यहाँ पे डबल टिक हो जाएगा, डबल टिक भी किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी, दैट्स मीन्स हमें क्या पता चल जाता है, मंजीत अभी इस मैसेज को देखा नहीं है लेकिन मंजीत की मोबाइल की इंटरनेट ऑन है, ये हमें पता चलता है। लेकिन जब कभी यहाँ पे व्हाइट कलर की दो ब्लू टिक की हो जाती है तो हमें क्या पता चल जाती है, दैट्स मीन्स मंजीत इज एक्चुअली सीन दिस पर्टिकुलर मैसेज, ये हमें पता चलता है या नहीं मंजीत? हाँ सर, जब सिंगल हाँ, टिक आता है तब इसका मतलब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल टाइप से ना, राइट एग्जाम्पल। राइट राइट। हम्म। सो दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ आईसीएमपी, यू कैन से। सो आईसीएमपी के मदद से हम यही चीज को ही आइडेंटिफाई करते हैं। आईसीएमपी अगर मुझे आर टीटीएल वैल्यू दे रहा है, दैट्स मीन्स मैं डेस्टिनेशन को रीच कर पा रहा हूँ। अगर आरटीओ दे रहा है, दैट्स मीन्स मैं डेस्टिनेशन को रीच तो कर पा रहा हूँ लेकिन ड्यू टू सम पॉलिसी आई एम नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, लेकिन डेस्टिनेशन मेरे नेटवर्क में है, इतना मुझे पता चल गया। और अगर अभी कभी आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल पता मिल रहा है, दैट्स मीन्स this particular destination is not available in my network, कोई request है, the device is actually down inside my network। so बहुत सारी चीजें, जैसे हमें व्हाट्सएप से बेसिकली वो टिक के मदद से जैसे हम समझते हैं मैसेज को, आईसीएमपी की इन तीन मैसेज से बेसिकली हम वो तीन चीजों को समझते हैं। आईसीएमपी की जो फेमस मैसेज है एक है आपका टीटीएल, आपको देगा टीटीएल देगा, दैट्स मीन रीचेबिलिटी ओके है। अगर आपको आरटीओ देगा, दैट्स मीन्स आई एम नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन बट द डेस्टिनेशन इज अवेलेबल इनसाइड माय नेटवर्क। But if you are getting the destination host unreachable, that means the destination is actually unavailable inside my network. That the actual meaning of this particular three message. Okay, ये normally बहुत ही अच्छा example है whenever we are coordinating with ICMP. Okay, after that, why ICMP is important? Yes, Manjit. सर, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। Yes, yes, okay, हमारे उसमें पॉलिसी लगी हुई है और हमारा किसी आईपी पे पिंग नहीं जा रहा है। okay, कोई एक पर्टिकुलर आईपी, फॉर एग्जांपल yes. 8.8.8 आईपी है। हमने पिंग मारा, पिंग नहीं जा रहा है। तो पिंग आगे नहीं जा रहा है तो उसको कैसे पता लगेगा कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है और आरटीओ है? जैसे लेट्स से दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है एंड दिस इज योर पी है, ये और यू कैन से दिस इज योर फायरवॉल, ये आपका फायरवॉल है एंड दिस इज योर अनदर सिस्टम। लेट्स से ये आपका 8.8.8.8, ये आपका ये हम्म। वाली सोर्स सिस्टम है विच इज 10.1, ऐसा ही है राइट। हम्म। यस सर। ये जैसे ही ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, फायरवॉल के पास, और यू कैन से राउटर के पास, इसमें कुछ भी ले सकते हो, फायरवॉल ले सकते हो और स्विच भी ले सकते हो और राउटर भी ले सकते हो। ओके, सबके अंदर सेम चीज रहती है, पॉलिसी बनती है। ओके, सो पॉलिसी के अंदर वो देखेगा बेसिकली जो आईपी को पिंग कर रहा है वो आईपी मेरी सबनेट में है या नहीं है, बेसिकली ये चेक करेगा। दिस इज द फायरवॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द राउटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो चेक करेगा ये आईपी अवेलेबल है या नहीं है, पहले वो चेक करेगा ये आईपी जिसको ये सोर्स मेरी पिंग कर रहा है वो आईपी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है, क्या ये 10.1 उसे पिंग कर सकता है, मतलब एक्सेसिबल कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे मैं पहले आपको कॉल करूंगा, फिर मैं पूछूंगा मंजित आप बात कर रहे हो या फिर कोई और बात कर रहा है। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं मंजित बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। लेकिन अगर मंजित बोलेगा या फिर आप बोलोगे नहीं सर मैं मंजित बात नहीं कर रहा, मैं उसकी दोस्त बात कर रहा हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बाद में बात करूंगा। सो लाइक द सेम, पहले जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल चेक करेगा डेस्टिनेशन कौन है, अच्छा डेस्टिनेशन 8.8.8.8 है, ओके ये तो अवेलेबल है मेरी नेटवर्क में। क्या इस 8.8.8 को ये 10.1 पिंग कर सकता है, रीच कर सकता है? अगर पॉलिसी नहीं लगा हुआ है, अगर पॉलिसी में अलाउ है देन तो वो अलाउ कर देगा। अगर पॉलिसी में आप ब्लॉक हो देन वो आपको बेसिकली एरर कोड क्या दे देगा, आरटीओ दे देगा। गॉट इट? ठीक है सर, क्लियर है। ओके, बिहाइंड द स्टोरी बेसिकली ऐसे होता है आपका।
Then why ICMP is important? देखो ICMP and ARP. I am just saying this word multiple time. These are two very important protocol. इंटरव्यूअर बहुत, अगर इंटरव्यूअर को भी थोड़ी बहुत टेक्निकल वो स्ट्रांग है आईसीएमपी और आर्प में, वो आपको बहुत तरीके से इसमें क्वेश्चन निकाल के पूछ सकता है। ओके, लाइक आईसीएमपी से पहले कौन सी मैसेज आती है, क्यों आर्प नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आती है आईसीएमपी से पहले आर्प क्यों नहीं आता, आपको वो ट्रिकी क्वेश्चन भी टैकल करना आना चाहिए। ओके, सन व्हाई आईसीएमपी इज इंपॉर्टेंट? आईसीएमपी डायग्नोस मैसेज, आईसीएमपी के अंदर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं हमारे, हम तो नॉर्मली देखते हैं 3 टाइप के मैसेज, आउट ऑफ दैट मल्टीपल टाइप्स के मैसेज होते हैं, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग एज ए इंपॉर्टेंट मैसेज। नॉर्मली डे टू डे में 3 टाइप के मैसेज के ऊपर ही ज्यादा डील करते हैं। ICMP sends diagnosis message like diagnosis destination unreachable to notify about the issue quickly। जैसे एक मैसेज रह रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब कोई इशू है इस डेस्टिनेशन में, इस डेस्टिनेशन को मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ। इशू क्या हो सकती है हमारी, डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है, डेस्टिनेशन डाउन है, ये इस तरह की इशू होती है। तो वहां पे बेसिकली आप क्विकली प्रोएक्टिव अप्रोच ले सकती हो। हाँ, इस डेस्टिनेशन मेरी, जैसे हमारी कोई फाइबर डाउन हो जाती है तो हम तुरंत क्या लगा देते हैं, पिंग लगा के देख देते हैं, वहां पे हमें डेस्टिनेशन अनरीचेबल दे रहा है, दैट मीन्स फाइबर ब्रेक हुआ है या फिर फाइबर की जो रूट है वहां पे कुछ इशू आया हुआ है। तो हमें प्रोएक्टिव एक अलर्ट मिल जाती है और हमारी मॉनिटरिंग में वो डाउन भी कर देता है नोड्स को। ओके, पिंग कनेक्टिविटी पहला आया मेरे पास, क्या, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, आफ्टर दैट पिंग। पिंग के अंदर क्या आती है, पिंग यूज आईसीएमपी, पिंग किसको यूज करता है, आईसीएमपी को यूज करता है। तो ये पिंग ट्रैशोल्ड हमेशा याद रखना, अगर आपकी नेटवर्क में आईसीएमपी आपने ब्लॉक करके रखा है तो पिंग ट्रैशोल्ड ये सारे कमांड काम नहीं करेंगे। ओके, सो हमेशा याद रखना, अगर कभी आप पिंग नहीं कर पा रहे हो कोई डेस्टिनेशन को, या फिर अगर आपको पूछा जा रहा है, लेट्स से यू आर ए नेटवर्क पॉलिसी मेकर, आप अगर आप एज ए नेटवर्क फायरवॉल इंजीनियर बैठ रहे हो कहीं पे, सो हमेशा किसी भी नेटवर्क में आप काम कर रहे हो आपको आईसीएमपी अलाउ करना ही पड़ेगा वहां पे। विदाउट अलाउिंग आईसीएमपी यू आर नॉट एबल टू रीच एनीवन और यू आर नॉट एबल टू पिंग एनीवन। ओके, इवन द नोड्स आर अलाइव बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू पिंग। ओके, then a ping use ICMP echo request and reply to verify if a website or device is reachable। ping के मदद से बेसिकली हम क्या पता कर सकते हैं, एक वेबसाइट, एक डेस्टिनेशन और एक डिवाइस मेरी लाइव है या नहीं है। ट्रस्ट रूट पाथ एनालिसिस, ट्रस्ट रूट के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरी डेस्टिनेशन की तरफ जो मेरी ट्रैफिक जा रहा है वो कौन सी रूट से जा रहा है वो मैं पता कर सकता हूँ वाया द हेल्प ऑफ ट्रस्ट रूट। एम्प्लॉयज आईसीएमपी, ये भी आईसीएमपी को आपको फॉलो करता है, टू मैप द पाथ एंड मेजर रेस्पॉन्स टाइम अक्रॉस द नेटवर्क हॉप्स। बेसिकली ट्रस्ट रूट की मदद से आप दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें मिलती है आपको। एक तो मेरी जो ट्रैफिक जा रही है वो कहाँ से जा रही है, लेट्स टेक एन वेरी गुड एग्जांपल। लेट्स से you have a dash source, this is your source, this is your destination। okay, this is your Airtel ISP, this is your Jio ISP। आप, आपकी जो सोर्स है वो एयरटेल से भी कनेक्टेड है, जियो से भी कनेक्टेड है, आपकी जो डेस्टिनेशन है दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम एयरटेल एंड जियो। ओके, अभी आपने यहाँ पे पिंग किया, लेट्स से पिंग आपने किया, लेट्स से इसकी आईपी है 10.1, इसकी है 10.2। आपने अभी पिंग किया 10.1 को, 10.2 सिस्टम में बैठ के आपने पिंग किया 10.1 को। तो ट्रैफिक आप एट अ टाइम दोनों लिंक में तो नहीं जा पाएगा, कोई एक लिंक में जाएगा। लेट्स से ट्रैफिक आपकी जा रहा है एयरटेल में। ओके, और ट्रैफिक जाकर एयरटेल से ही पहुंच रहा है डेस्टिनेशन में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लिंक अभी यूज होकर मेरी ट्रैफिक जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसरूट। ट्रांसरूट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो ट्रैफिक जा रही है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स, इट टेक व्हिच पाथ, कौन सी पाथ है और कौन सी रास्ता देके मेरे ट्रैफिक जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसरूट। ट्रांसरूट की मदद से दूसरी एक चीज जो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं एयरटेल के साइड से जा रहा हूँ, अगर मैं एयरटेल के पाथ को यूज करके जा रहा हूँ, देन मुझे कितनी टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। अगर मैं जियो को यूज करके जा रहा हूँ देन मुझे कितना टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन ऑल्सो, आपको पता चल जाएगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरी टाइम क्या लग रहा है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो माई CMD। मैं यहाँ पे सिंपल जाके ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट 8.8.8.8। ओके, हिट करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे हर एक नोड में मिली सेकंड दिला रहा है। ओके, दिस इज द मैक्सिमम मिली सेकंड, ओके, से मैक्सिमम टाइम, दिस इज मिनिमम, दिस इज द एवरेज यू कैन से। ओके, सो देखो यहाँ पे जैसे ही डेस्टिनेशन तक पूरी जाकर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, मुझे वहां पे एक टाइम देगा कि इतना टाइम मुझे लगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सो हियर इज द टाइमर्स, देखो मुझे सारी टाइमिंग्स भी दे रही है और जिसके बिहाफ में मैं डिसीजन ले सकता हूँ जो हमारी एयरटेल की जो रूट है इट इज गुड और माई जियो रूट इज गुड।
ओके, अगर आपको जो रिपोर्ट आपकी आया एयरटेल की जो रूट है, इट्स टेक 10 मिली सेकेंड टू रीच द डेस्टिनेशन। सेम टाइम में जियो की जो रूट है, इट टेक 5 मिली सेकेंड टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस किस में मिल रही है, जियो में। सो यू कंसिडर फर्दर, अगर फ्यूचर की कोई कम्युनिकेशन करनी है तो आपको जियो को बेसिकली आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे, बिकॉज ऑफ जियो यूज लेस टाइम इन कंपेरिजन टू एयरटेल। Okay, so there's other two important thing we receive by the help of the trace route। trace route के मदद से हमें दो चीजें बेसिकली मेजरली मिलती है। एक तो है मुझे पाथ पता चल जाता है, इन which path my traffic is going from source to destination and vice versa। another one is the destination time। बेसिकली डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए my total time to reach the destination वो भी मुझे किस में मिल जाता है, इनसाइड trace route। ओके, आफ्टर दैट इफ आई जस्ट गो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग इंपोर्टेंस, आईसीएमपी जो सबसे ज्यादा यूज होता है नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। ओके, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कह लो, नेटवर्क मॉनिटरिंग कर लो, वहां पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है दिस इज आईसीएमपी। कोई भी कोई भी मॉनिटरिंग एप्लीकेशन ले लो, लाइक सोलर विंड ले लो, आप पिंग, आप वो व्हाट्सएप बोर्ड ले लो, आप पीआरटीजी ले लो, आपको वहां पे पढ़ाया क्या जाता है, एसएनएमपी यूज करता है। ठीक है, एसएनएमपी तो यूज करता है, लेकिन एसएनएमपी वो यूज करता है लॉग को एनालिसिस करने के लिए, डेटा कैप्चर करने के लिए, लेकिन बैकएंड में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है फ्रॉम मॉनिटरिंग सिस्टम टू योर डेस्टिनेशन, दिस इज बाय द हेल्प ऑफ दिस आईसीएमपी। बैकएंड में जो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन वो करते हैं, वो आईसीएमपी के ऊपर ही करते हैं। सो दैट्स व्हाई आईसीएमपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लोकल नेटवर्क, इन योर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, इन योर नेटवर्क मॉनिटरिंग, इन योर वाइड एरिया नेटवर्क, कहीं पे भी आप जाओ, आईसीएमपी इज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन नेटवर्किंग। ओके, आफ्टर दैट कॉमन मैसेजेस इन आईसीएमपी। आईसीएमपी के अंदर कुछ कॉमन मैसेजेस है, लाइक इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। echo request and echo replay message enable ping command to test connectivity between device and network approach। जैसे आपने ping किया, let's say I am hitting command ping 8.8.8.8। सो इस टाइप की जो मैसेज होती है, इसे क्या कहा जाता है, इको रिक्वेस्ट। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिंग के मदद से बेसिकली मैं 8.8.8. सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रीचेबिलिटी है तो ओके बताओ, नहीं है तो मत बताओ। ओके, आई थिंक समवन इज ज्वाइनिंग राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली आपके पास इको रिक्वेस्ट, इको रिप्ले, ये दो मैसेजेस आपके पास मिलते हैं। पहले जो मैसेज है आईसीएमपी के अंदर, तो वैसे बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस इनसाइड आईसीएमपी, बट मेजरली दो मैसेजेस आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। एक होती है आईसीएमपी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जैसे नाम ही बता रहा है, मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैं जाके सीएमडी में पिंग करूंगा, पिंग 8.8.8.8, दैट मीन दिस मैसेज इज नथिंग बट योर रिक्वेस्ट मैसेज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है 8.8.8 इट इज रीचेबल और नॉट। ओके, जैसे ही वो सिस्टम के पास जाके रिक्वेस्ट पहुंचेगा, वो रिक्वेस्ट अगर वो सिस्टम अगर 8.8.8. सर्वर जो है या फिर सिस्टम है वो अगर लाइव होगा, वो रेस्पॉन्स देगा। जैसे ही वो रेस्पॉन्स देगा, दिस इज नथिंग बट योर इको रिप्ले। ओके, और उसके बिहाफ में आपको क्या मिलेगा, टीटीएल वैल्यू मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू, मैं यहाँ पे सीएमडी में गया, जैसे ही मैं पिंग जाके 8.8.8.8 को जैसे ही मैं पिंग करूंगा और यहाँ पे जाके एंटर करूंगा, बाय डिफॉल्ट दिस मैसेज इज नथिंग बट योर रिक्वेस्ट मैसेज। ये अभी कौन सी टाइप की मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज है। जैसे मैं जाके यहाँ पे पिंग करूंगा, देखो मुझे यहाँ पे टीटीएल वैल्यू मिल रहा है। टीटीएल वैल्यू मिल रहा है इन द सेंस मैं इस सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ। ओके, अभी मैं इस सर्वर को रीच कर पा रहा हूँ, मुझे किसने बताया, मुझे बताया उसी सर्वर ने बताया। जैसे मैं रिक्वेस्ट उस सर्वर को किया, लेट्स से मैंने ping.8.8.8 को पिंग किया, ये ट्रैफिक मेरी 8 डॉट सर्वर के पास गया। अभी सर्वर ने क्या कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ। ओके, तो जैसे ही उसने कहा मैं जिंदा हूँ, दैट्स मीन्स दिस इज, जो सर्वर ने मुझे बोला, दिस इज नथिंग बट योर इको रिप्ले। ओके, दिस इज नथिंग बट योर इको रिप्ले। अगर कुछ वो नहीं बोलता, उस केस में मेरे पास इको रिप्ले में क्या आता, एरर मैसेज आता, मे बी आरटीओ आता, मे बी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता। सर्वर ने बोला, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस टीटीएल वैल्यू। यहाँ पे मुझे रिप्ले मिल रही है, देखो यहाँ पे मिल रही है ना, रिप्ले फ्रॉम 8.8.8। रिप्ले, रिप्ले फ्रॉम कौन बोल रहा है आपको, 8.8.8.8 बोल रहा है। सो दिस इज हाउ द टू मेजर, you can say two major messages we can explain, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर, और इको रिक्वेस्ट हमेशा सोर्स मशीन भेजता है टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, और इको रिप्लाई कौन भेजता है, डेस्टिनेशन भेजता है टूवर्ड्स योर सोर्स मशीन। ओके, गॉट इट, हैविंग एनी क्वेरी, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। नो सर।
ओके, रजत हैविंग एनी क्वेरी? ओके, आई थिंक यू आर इन ऑफिस। आफ्टर दैट डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेज, ये मैसेज हमें, हालांकि हमने डिस्कशन जस्ट पहले अभी किया, डेस्टिनेशन अनरीचेबल बेसिकली आपको कब मिलता है, जब आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, रीच क्यों नहीं कर पा रहे हो? मे बी डेस्टिनेशन आपका डाउन हो सकता है, मे बी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, this ICMP message notify user when a packet cannot reach its intended destination due to network problem or path issue. Path issue in the sense फाइबर कट हो सकता है, फाइबर ब्रेक डाउन हो सकता है, आपकी जो फैट बॉक्स होती है, बहुत सारे बॉक्स होती है, वो बहुत सारी चीजें होती है, वो आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे में भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बेसिकली डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल की मदद से हमें क्या पता चल रहा है, आवर सिस्टम इज नॉट एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ओके, उसके बाद नेटवर्क ट्रबल शूटिंग रोल्स, आईसीएमपी की सबसे बड़ा रोल कहाँ रहती है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करने के लिए। अगर इफ यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर और इफ यू आर ए आईटी गाय, आपको पता होगा कुछ हो ना हो, कभी हम कोई भी ट्रबल शूटिंग करते हैं, कम से कम 10 बार तो पिंग करके चेक करते हैं कि ये पिंग हो रहा है या नहीं है, या ट्रांसमिट हो या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में जो सबसे बड़ा हाथ है, आईसीएमपी का हाथ है। अगर आईसीएमपी नहीं होता, सो इट इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रबल शूट दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। So thanks for ICMP to make that particular ping and transroute command to make network troubleshooting very much easy. Okay. ICMP message assist in diagnosis network health issue, helping administrator identify and resolve connectivity problem. अभी यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हमने, हेल्थ इशू। हेल्थ इशू का मतलब क्या है, नेटवर्क हेल्थ इशू। अभी नेटवर्क की हेल्थ कैसा है, क्या है, वो मुझे आईसीएमपी की मदद से कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है, जैसे आप किसी को पिंग करते हो, पिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप के पिंग होते हैं, वो हमें आगे पढ़ेंगे। पिंग के अंदर एक होता है डिफॉल्ट पिंग। डिफॉल्ट पिंग इन द सेंस आपने पिंग किया 8.8.8.8, दिस इज डिफॉल्ट पिंग। ओके, डिफॉल्ट पिंग में नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पे गया, सीएमडी गया, पिंग कर रहा हूँ 8.8.8.8, दिस इज द डिफॉल्ट पिंग। ओके, इसके अंदर मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, 4 बार बेसिकली मेरी क्या हुआ, रिक्वेस्ट यहाँ पे गया, 4 बार मेरे पास यहाँ से रिक्वेस्ट गया, और 4 बार की रिक्वेस्ट की बिहाफ में मुझे 4 रेस्पॉन्ड मिल गया। ओके, दिस इज द डिफॉल्ट वन। अगर इसको मैं बोल रहा हूँ, इसी को, ये तो हुआ मेरे डिफॉल्ट पिंग। ओके, दूसरा जो होता है मैनुअल पिंग। मैनुअल पिंग का मतलब क्या होता है, आप डिफाइन करोगे कितनी बार रिक्वेस्ट मैसेज भेजनी है, कितनी बार रेस्पॉन्ड आपको लेनी है, कितनी बार इको रिक्वेस्ट करनी है, कितनी बार इको रिप्ले आपको लेनी है। वो कैसे करते हो आप सिंपली करते हो पिंग 8.8.8.8-A10। जैसे सॉरी, जैसे ये करते हो, देखो मैंने अभी 10 लिखा है यहाँ पे। 10 का मतलब देखो, अब पहले ये 4 बार पैकेट भेज रहा था, और यू कैन जस्ट 4 बार ये रिक्वेस्ट भेज रहा था, अभी ये 10 बार रिक्वेस्ट भेजेगा। दैट मीन मैं अभी डिफाइन करूंगा एज ए नेटवर्क गाय, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि कितनी बार मैं इको रिक्वेस्ट भेजूंगा और कितनी बार मैं इको रिप्लाई मिलेगा मुझे। दिस इज नथिंग बट योर मैनुअल पिंग। उसके बाद जो लास्ट में आता है, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, व्हिच इज योर जीटा पिंग। जीटा पिंग की नाम बेसिकली बहुत सारे लोग गलत लेते हैं, जिटर पिंग कहते हैं, दिस इज एक्चुअली जीटा पिंग। जीटा पिंग में आप क्या करते हो, पिंग 8.8.8.8 - टी कर देते हो। ये बेसिकली कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक आप इसे मैनुअली बंद नहीं करोगे। मैनुअली बंद कैसे करनी है, कंट्रोल सी दबाओ, बंद हो जाएगा। ओके, दिस इज योर जीटा पिंग। तो नॉर्मली पिंग के अंदर भी हमें 3 टाइप के पिंग मिलते हैं। डिफॉल्ट पिंग व्हिच इज हैविंग, नॉर्मली अगर विंडोज सिस्टम की बात करूं, डिफॉल्ट पिंग में 4 रिक्वेस्ट जाती है, 4 रेस्पॉन्स आती है, 4 इको रिक्वेस्ट जाती है, 4 इको रिप्ले आती है। ओके, सेम टाइम में अगर मैक ओएस की बात करो, वहां पे अगेन कंटिन्यूस वो बाई डिफॉल्ट हो जाती है। ओके, सो एक होती है डिफॉल्ट पिंग, दूसरा होता है मैनुअल पिंग, तीसरा जो होती है दिस इज जिटा पिंग। ओके, अभी मैंने जैसे बात किया था हेल्थ। हेल्थ मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन नो द हेल्थ। जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, कभी आप फाइबर आपकी डाउन हुआ है, आप फाइबर को ऑफ कर रहे हो, फाइबर स्प्लाइसिंग कर रहे हो, या फिर फाइबर को अप कर रहे हो। सो वहां पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली विंडोज सीएमडी खोलते हैं, पिंग लगा के रख देते हैं, 8.8.8.8 को पिंग करके रख देते हैं। ओके, अगर पिंग कंटिन्यूअस ऐसे चल रहा है, कंटिन्यूअस मुझे इक्वल रिप्लाई मिल रहा है, दैट्स मींस माय नेटवर्क हेल्थ इज ओके, मेरी कम्युनिकेशन ओके स्टेबलिश हो रही है। दूसरी चीज मुझे क्या पता चल रहा है, इसके वजह से मुझे दूसरा चीज पता चल रहा है, यहाँ पे जो टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग अगर बहुत ही ज्यादा रहा है कि 1024 2420, अगर 1000 वैल्यू रह रहा है यहाँ पे, दैट्स मीन मुझे ये पता चल रहा है मेरे नेटवर्क में लेटेंसी ज्यादा है।
चौथा क्या, दूसरा मुझे क्या पता चल रहा है इसकी मदद से, अगर यहाँ पे एक मैसेज मुझे रिप्ले हो रहा है, जैसे ये लिख रहा है ना रिप्ले फ्रॉम 8.8.8, एक में आ रहा है रिप्ले 8.8.8.8 से मतलब इको रिप्ले एक में आ रहा है, दूसरे में यहाँ पे आरटीओ लिख के आ रहा है, चौथे में पूरे फिर से रिप्ले आ रहा है, पांचवें में फिर मुझे आरटीओ लिख के आ रहा है, तो मुझे मतलब क्या है, मेरी नेटवर्क में फ्लैप हो रही है, मेरे नेटवर्क में क्या हो रही है, लैग्स हो रहे हैं, एक एक रिक्वेस्ट मेरी रेस्पॉन्ड हो रही है, दूसरी मेरी ड्रॉप हो रही है, पैकेट ड्रॉप जिसे हम कहते हैं ना, कभी कभी नेटवर्क मेरी डाउन हो रहा है, कभी कभी अप हो रहा है, सो लाइक द सेम, मतलब एक जो रिक्वेस्ट है आपकी वो रिसीव हो रहा है, एक में आपको पिंग मिल रहा है, ओके, दूसरे में आपको पिंग नहीं मिल रहा, आरटीओ मिल रहा है, फिर चौथे में आपको पिंग मिल रहा है, फिर पांचवें में आपको पिंग बेसिकली क्या आ रहा है, आरटीओ आ रहा है। सो इसकी मदद से हमें क्या पता चल रहा है कि मेरी नेटवर्क सही से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा कम्युनिकेशन को। सो दैट्स व्हाई यू आर नोइंग दैट हेल्थ, हेल्थ की मदद से आप क्या पता कर सकते हो, मेरे नेटवर्क की लेटेंसी पता कर सकते हो। दूसरा, मेरे नेटवर्क की स्टेबिलिटी पता कर सकते हो, स्टेबिलिटी इन द सेंस मेरी नेटवर्क जो कम्युनिकेशन कर रहा है इट इज स्टेबल और नॉट, अगर स्टेबल है तो कोई ब्रेकडाउन वहां पे नहीं आएगा, अगर एक पैकेट के बाद एक पैकेट ड्रॉप आपको मिल रहा है दैट्स मीन देयर इज नॉट स्टेबिलिटी इन योर नेटवर्क। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू नो health about health of your network by the help of this ICMP. Got it, guys? यस सर। After that, these are the some common messages inside ICMP. ICMP के अंदर जैसे मैंने कहा there are lots of messages. एक दो मैसेज नहीं, there are बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। लाइक उन हर एक मैसेज का हर एक वैल्यू भी होता है। लाइक देखो यहाँ पे इको रिप्ले, जैसे हम पिंग लगाते हैं ना, इको रिप्ले, तो उसका जो कोड रहता है दिस इज 0, डेस्टिनेशन अनरीचेबल जैसा हो जाता है उसकी कोड रहता है 3, सोर्स क्विच होता है मतलब 4, रीडायरेक्ट होता है उसकी कोड, उसकी जो वैल्यू रहती है दिस इज 5, इको पिंग जैसे यहाँ पे लगाते हो इको, इट इज इको रिप्ले, जब आपको सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है या फिर रेस्पॉन्ड भेजता है, आपने पिंग किया, उस तरफ से जब वैल्यू आपको मिलता है यस मैं जिंदा हूँ, दिस इज भाई भाया 0, और जब आप पिंग करते हो आपके सिस्टम से, जब आप पिंग करोगे द वैल्यू इज 8, दिस इज द कोड, ओके। उसके बाद टाइम एक्सिस, दिस इज 11, पैरामीटर प्रॉब्लम 12, time stamp replay, this is 15. There are multiple types of ICMP messages. These are the messages and these are the codes in behalf of that particular messages, okay. और अभी इस रिक्वेस्ट जैसे मैंने कहा ये टाइप या मैसेजेस है, इनका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको वो मैसेज की टाइप और जो मैसेज है उसका मतलब यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे देखो दिस इज ए हेडर, ओके। हमेशा याद रखना एवरी प्रोटोकॉल हैव देयर ओन हेडर, कोई भी आप प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो लाइक एसएनएमपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, दे हैव देयर ओन हेडर, सबके पास अपनी अपनी हेडर है, उस हेडर के अंदर वो डेटा सेट करके आगे भेजते हैं, ओके। यहाँ पे जैसे आईसीएमपी की हेडर है, उसके अंदर ये डेटा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे रीसेट हेडर बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, यहाँ पे चेकसम, चेकसम क्या रहती है, बेसिकली आईसीएमपी की जो पैकेट है वो आपकी ऑथेंटिकेट है या नहीं है, बीच में इसे कोई हैक तो नहीं कर रहा, वो बेसिकली चेकसम के मदद से चेक होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे रहती है कोड, कोड इन द सेंस आपकी कोड जो है दिस इज सोर्स कोड, दिस इज डेस्टिनेशन कोड। टाइप के मतलब क्या होता है, अगर आपने पिंग मैसेज भेजा, लेट्स से मेरी सिस्टम में मैंने पिंग मैसेज भेजा, तो इस टाइप के बदले यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आएगा 8, ओके। और कोड में क्या आ जाएगा, पिंग लिख के आ जाएगा, ओके। चेकसम तो बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा क्योंकि वो एरर की चेकसम से, रीसेट हेडर में 0 सेट होके रहेगा, ओके। अगर मुझे रिप्लाई मिल रहा है तो यहाँ पे टाइप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मेरी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मैसेज मुझे मिल रही है, यहाँ पे टाइप में 3 हो जाएगा। गॉट इट? आपको इतना ज्यादा, अगेन आपको इतना ज्यादा नहीं जानना, आपको क्या जानना है, देखो इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डेप्थ में जाके समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ओके। आईसीपी में 4 ही फील्ड है, डेटा सेक्शन में एक्चुअली आपकी जो डेटा रहती है, ओके, और रीसेट सेक्शन में बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। अगर कभी आपकी हेडर कहीं पे इशू आ रहा है, जैसे हेडर बेसिकली लेट से आपकी हेडर टीसीपी के ऊपर काम करता है, जैसे मैंने कहा आपकी हेडर लेट से कहीं पे कुछ इशू आया, मतलब वहां पे चेकसम बेसिकली आपकी यू कैन से कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपकी हेडर के किसी ने हैक कर दिया, सो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक हेडर को क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। सो यहाँ पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, दैट्स मींस एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे अगर 1 हो रहा है दैट्स मींस आप रीसेट को, आप पूरी की पूरी हेडर को फिर से बना रहे हो, ओके। चेकसम, चेकसम बाय डिफॉल्ट वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को लेके बना लेता है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना। कोड, कोड इन द सेंस जो भी टाइप रहेगा उसका क्या कोड है, ओके। अगर आप मैसेज भेज रहे हो दैट्स मीन दिस इज 8, यहाँ पे टाइप के बदले क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपको कोई पिंग मैसेज भेज रहा है और आप रिप्लाई दे रहे हो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, ओके। सो आपको क्या क्या याद रखनी है इन कोड में से, आपको क्या क्या याद रखनी है, 0 कोड याद रखना आपको है,
3 नंबर कोड याद रखनी है, 8 नंबर कोड याद रखनी है एंड 5 नंबर कोड याद रखनी है, बिकॉज इंटरव्यूअर 4 कोड आपको पूछता ही पूछता है। और सीसीएनए के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए, कम से कम 1-2 कोड वहां पे भी आपको मिल ही जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आईसीएमपी मैसेज। आईसीएमपी मैसेज की अगर बात करूं, नॉर्मली 2 टाइप की आईसीएमपी की मैसेज होती है, एक होती है एरर रिपोर्टिंग मैसेज, दूसरा होता है क्वेरी मैसेज। ओके, आईसीएमपी के अंदर 2 टाइप की मैसेज होता है गाइस, जस्ट फोकस। एक होती है एरर रिपोर्टिंग, दूसरा होता है क्वेरी। एरर रिपोर्टिंग के अंदर अगर कुछ एरर आया आपकी कम्युनिकेशन में, देन आपको वो रिपोर्ट करने के लिए बेसिकली वो यूज करता है। जैसे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब मैं डेस्टिनेशन को रीच नहीं कर पा रहा हूँ, दैट्स वाई योर आईसीएमपी के मदद से आपको वो रिपोर्ट करता है। और उसके कोड क्या है, 3 है। सीक्वेंस क्विज, सीक्वेंस क्विज मीन आपकी जो फ्लो है वो फ्लो सही से नहीं जा रहा। ओके, आपने किसी और को पिंग किया था, किसी और को पिंग हो रहा है, सो दैट्स व्हाई टाइम एग्जिस्ट। बेसिकली जो जिस सिस्टम को आप पिंग कर रहे हो, उस सिस्टम में बेसिकली क्या टाइम सही से फिक्स नहीं है, या फिर ऐसा कुछ इशू में बेसिकली आपको टाइम एग्जिस्ट की प्रॉब्लम आ रहा है। पैरामीटर प्रॉब्लम से बेसिकली आपकी जो चेकसम वैल्यू है वो बेसिकली गलत सेट हुआ है, या फिर रीसेट हेडर में कुछ गलत वैल्यू आ गया है, तो पैरामीटर में आता है। रीडायरेक्शन, मतलब रीडायरेक्शन इन द सेंस यू कैन से कॉल फॉरवर्डिंग लाइक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होती है। रीडायरेक्शन का मतलब क्या है, आपने पिंग किया 8.8.8.8 को, लेकिन 8.8.8.8 सर्वर में आपने क्या रखा है, रीडायरेक्शन लगा रखा है। कोई भी बंदा 8.8.8 को पिंग करेगा, वो किस पे जाएगा, 1.1 को बाय डिफॉल्ट पिंग कर देगा। सो अगर वैसी कोई कंसेप्ट आपने पॉलिसी लगा रखा है, तो वहां पे रीडायरेक्ट की एरर रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, और उसकी कोड है 5। क्वेरी में क्या मिलेगी, इको रिप्ले। जैसे आपने पिंग किया, कम्युनिकेशन ओके है, आपको पिंग टीटीएल वैल्यू मिल रही है, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, 8 और 0। 8 हमने पढ़ा था इको के लिए होती है, आप जो ट्रैफिक आप भेजोगे पिंग करोगे, दिस इज 8। अगर आपको रेस्पॉन्ड मिल रही है, दिस इज 0। उसके बाद टाइम स्टैम्प सीक्वेंस, दिस इज 13-14। एड्रेस मास्क, दिस इज 80-80। राउटर सोर्सेज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज 10/9। तो ये कुछ एरर मैसेजेस होते हैं, लेकिन हमेशा आपको जो याद रखने वाली चीज ये है, आउट ऑफ आईसीएमपी, आईसीएमपी हैव 2 टाइप्स ऑफ मैसेजेस, एरर रिपोर्टिंग एंड क्वेरी मैसेजेस। एंड दिस इज हाउ देयर आर 4 headers, there are 4 fields inside this ICMP header, and this and this you have to know these 4 error codes and their messages. Got it guys? सर जैसे आरटीयू वाला मैसेज है उसका कोड क्या होगा? वो इसी के अंदर ही फॉल करेगा, दिस इज डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल के अंदर 3। ओके। और सच से डाटा सेक्शन है इसमें, क्या है वो टाइम आता होगा टीटीएल वाला जो नहीं नहीं नहीं, एवरेज और मैक्सिमम? डेटा सेक्शन में आपकी एक्चुअल रॉ डेटा रहती है, जो डेटा आप भेजते हो। पिंग में हम जैसे वो आईपी भेजते हैं तो वो? हाँ हाँ, वो आईपी सोर्स, आईपी डेस्टिनेशन, आईपी सोर्स में एक, डेस्टिनेशन में एक, बहुत सारी चीज। ओके, ठीक है सर, ठीक है। गॉट इट रजत? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। उसके बाद आर वर्सेस आईसीएमपी। देखो इन दोनों की वैसे तो कंपैरिजन होते नहीं है, लेकिन इसको कंपैरिजन अगर आप देखोगे ना, दोनों दोनों के अंदर 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाएंगे। प्रोपोज क्या है, पहला इनका मतलब क्या है, मकसद क्या है। आर का सिंपल सा मकसद है, मेरे पास कोई एक पैरामीटर है, मैं दूसरी पैरामीटर ढूंढ रहा हूँ, मे भी वो पैरामीटर मेरे पास आईपी है, मे भी मेरे पास मैक है, उसके बिहाफ में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी एड्रेस को ढूंढ रहा हूँ। ओके, और आईसीएमपी के सेम टाइम में क्या है बेसिकली प्रोपोज, दिस इज एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस। आईसीएमपी की मदद से आप क्या कर सकते हो, एरर रिपोर्टिंग कर सकते हो और एरर को डायग्नोस कर सकते हो। ओके, एरर को डायग्नोस कैसे करोगे, लेट्स से आपको मिल रही है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, तो आपको आइडिया क्या लग गया, मेरी डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, मैं भी मेरी डेस्टिनेशन डिवाइस डाउन है, मैं भी मेरे डेस्टिनेशन में कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप उस टाइप की काम करोगे, उस टाइप के आप ट्रबल शूटिंग के ऊपर ध्यान दोगे। ओके, सो दैट्स व्हाट डायग्नोसिस। ओके, लेयर में कौन सी लेयर में काम करती है, जब हम ओएसआई के अंदर ज्यादा डीप एंड डाइव करेंगे, वहां पे हम लेयर को भी बाइफरकेशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ के चलो, जो आर्फ चलता है, डिसीजन डाटा लिंक लेयर। Why ARP is running in data link layer? Because ARP के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैक एड्रेस को टारगेट करते हैं। ARP का सिंपल सा मकसद यही होता है कि वो मैक एड्रेस के ऊपर काम करे। सो दैट्स व्हाई डेटा लिंक लेयर जो हमारी होती है ओएसआई मॉडल में, और इवन से टीसीपी आईपी मॉडल में, डेटा लिंक लेयर इज नथिंग बट योर मैक लेयर। ओके, और आईसीएमपी बेसिकली सबसे ज्यादा किसके ऊपर डील करता है, आईपी एड्रेस, क्योंकि वहां पे आपको वो पिंग वगैरह होती है, ट्रांसलेट रहती है, एरर रिपोर्टिंग, डायग्नोसिस रहती है। सो वो आपको कैसे पता चलता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस आईपी एड्रेस, दैट्स व्हाई आईसीपी इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। सो कौन से लेयर की प्रोटोकॉल है, इसे समझने के लिए आप ऐसे इसे रटो मत, आप इसे ऐसे समझो, जो आर्प होता है ये मैक एड्रेस के ऊपर ज्यादा काम करता है, दैट्स व्हाट इट इज डील ऑन डाटा लिंक लेयर।
जो आईसीएमपी होता है, दिस इज डील ऑन आईपी एड्रेस, दैट्स व्हाई दिस इज वर्किंग ऑन नेटवर्क लेयर। ओके, कॉमन यूज इनकी क्या रहती है, आर्प की बेसिकली यूज कहाँ रहती है, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्योंकि आर्प के मदद से हम क्या करते हैं, लोकल नेटवर्क में हमारी आईपी टू मैक को मैप करते हैं। और आईसीएमपी हम नॉर्मली किस लिए यूज करते हैं, पिंग और ट्रस्ट रूट को यूज करने के लिए। ओके, अगर मेरी नेटवर्क में आईसीएमपी ब्लॉक है, देन वी कांट यूज पिंग, ट्रैशर्ट और जितने भी उनकी बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन कमांड्स हैं, हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे, लाइक पिंग 8.8.8 डैश ए डैश एन, ये सारा हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, समरी एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करूं, रैप अप विथ प्रैक्टिकल सिनेरियोज, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्प मैप आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, एनेबलिंग डिवाइस टू लोकेट ईच अदर ऑन द नेटवर्क। बेसिकली आपकी जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, उसके ऊपर आईपी एड्रेस के बिहाफ में मैक एड्रेस कौन सी चल रही है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल रोल निभाता है, यू कैन से दिस इज योर आर्प। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यू कैन से मैसेज आईसीएमपी, देयर आर टू टर्म, मैसेज भी कह सकते हो, मैनेजमेंट भी कह सकते हो। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल is used for diagnose reporting network issue, ensuring connectivity and troubleshooting। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करूं, आरप इज लाइक आस्किंग आइडेंटिफाइड पार्टी, बेसिकली किसी की पार्टी में आप जा रहे हो, आपको एड्रेस नहीं पता, आप किसी को पूछ के जा रहे हो, सो लाइक द सेम, आपके पास आईपी एड्रेस है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता, आप नेटवर्क में पूछ के जा रहे हो उस डिवाइस के पास। आईसीएमपी इज लाइक नॉकिंग टू चेक समवन इज होम और नॉट। आईसीएमपी कैसे काम करता है, लाइक कोई बंदा घर के अंदर है या नहीं है, आप कैसे पता करते हो, कॉलिंग बेल बजाते हो या फिर उसकी डोर नॉक करते हो, अगर वो होगा, वो डोर खोलेगा, दैट्स मींस डेस्टिनेशन रीचेबल, अगर वो नहीं है, दैट्स मीन डेस्टिनेशन अनरीचेबल। सो आईसीएमपी इज लाइक नॉकिंग टू चेक समवन इज होम और नॉट। जैसे घर के अंदर कोई है नहीं है, आप कैसे चेक करते हो, बाय द हेल्प ऑफ दिस नॉकिंग मेथड। सो लाइक द सेम, आईसीएमपी की मदद से नेटवर्क के ऊपर कोई डिवाइस है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ओके, after that, this is the example, or you can say this is the pictorial representation of how ARP is actually working. As I already told you, this scenario we are already considering. Okay, and after that, this is very interesting part out of this particular session, जो हमने आर पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, और हार्प का जो आर्प प्रोटोकॉल था हमारे पास, उसके अंदर जो हमने प्राइमरी गोल देखा था, जो आर्प का प्राइमरी गोल जो था आर्प का, मेरे पास आईपी एड्रेस है, मुझे मैक एड्रेस ढूंढना है, या फिर मेरे पास मैक एड्रेस है, मुझे आईपी एड्रेस ढूंढना है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर मेथड, आर्प बेसिकली हमारे पास चार टाइप के हैं, एंड यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस। आपको सारे आर्प के बारे में थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। हमारे पास नॉर्मली आर्प जो होती है, अगर आप नॉर्मल बंदे को पूछोगे, अपन नॉर्मल इंजीनियर को पूछोगे आर्प क्या होता है, तो बोलेगा आर्प बेसिकली होती है आईपी एड्रेस की मदद से मैक एड्रेस को ढूंढना। दिस इज नॉर्मल आंसर प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क इंजीनियर, बट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्कर, क्योंकि आप नेटवर्कर से पढ़ रहे हो, यू आर ए प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर, दैट्स वाई आपको एडवांस चीजें भी आनी चाहिए। आपको अगर कोई आर पूछ रहा है, तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हिच काइंड ऑफ आर्प यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि आपके पास टाइप्स ऑफ आरपी है। आपके पास नॉर्मली कितने टाइप के आर्प है, चार टाइप के आर्प है। एक है प्रॉक्सी आर्प, एक है ग्रेशियस आर्प, तीसरा है रिवर्स आर्प, चौथा है इनवर्स आर्प। अगेन आई जस्ट रिपीट, प्रॉक्सी आर्प, ग्रेशियस आर्प, रिवर्स आर्प, इनवर्स आर्प, ये चारों आर्प आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन बाय वन। पहले आता है हमारे पास प्रॉक्सी आर्प। प्रॉक्सी आर्प अभी जस्ट मैंने जैसे मंजित को समझाया, देखो मंजित, आपकी एग्जांपल जो आप अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, उसी सेम एग्जांपल की एग्जांपल के ऊपर किसने काम किया है, प्रॉक्सी आर्प ने काम किया है। जैसे ये सिस्टम है, इट इज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ये जो सिस्टम है इसने क्या किया, इसने इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की मैक एड्रेस को ढूंढा, लेकिन दिस आईपी एड्रेस इज नॉट इन द नेटवर्क बट आई कैन प्रोवाइड। लेकिन राउटर ने इसको क्या बोला कि ये जो आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हो, ये तो आपका नेटवर्क में है नहीं, लेकिन ये आईपी एड्रेस की मैक एड्रेस मैं आपको दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरी एक नेटवर्क में है। सो राउटर ने अपनी मैक एड्रेस को किसको दे दिया, इस पर्टिकुलर डिवाइस को दे दिया। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी एक जस्ट कंसेप्ट देखा था ना, राउटर बाईपास नहीं कर पा रहा था ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, राउटर क्या करता था, अपनी इंटरफेस की आईपी एड्रेस दे देता था, सेंड द इनिशियल कम्युनिकेशन विल हैपन, दिस एक्चुअली हैपन इनसाइड प्रॉक्सी आर। गॉट इट मंजित? हाँ, यस सर, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे राउटर की आईपी एड्रेस यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, एंड दिस एक्चुअल पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट हमने सही से पढ़ा था उसे, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज हैंडल्ड बाय प्रॉक्सी आर। हमें से याद रखना, ये जो पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चलता है, दिस इज हैंडल्ड बाय प्रॉक्सी आर। गॉट इट? या फिर मैं और एक बार समझाऊं इसको? सर इसमें
जो एक्चुअल मैक एड्रेस है वो कभी भी नहीं जाएगा ना उसके पास, दूसरे पीसी के नहीं पास? कभी नहीं, नहीं कभी नहीं जाएगा। जब बीच में राउटर लग जाएगा तो किसी भी सिचुएशन हाँ में एक्चुअल नहीं जाएगा ना? नहीं, ठीक है। वो सब कुछ राउटर ही हैंडल करेगा, राउटर के इंटरफेस आईपी एड्रेस ही सबके पास रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हमें आगे इसके ऊपर भी डील करनी है, जब हम बड़े बड़े लैब करेंगे उसके ऊपर हमें ग्रेशियस आर्प के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ग्रेशियस आर्प बेसिकली क्या आता है, हाई अवेलेबिलिटी फेलोवर में यूज किया जाता है, लाइक वर्चुअल मशीन आईपी कॉन्फ्लिक्ट। जो हम कहते हैं ना, बहुत सारे इंजीनियर्स या फिर आप भी ने भी सुना होगा वो टर्म, आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए डीएससीपी हमने लगा रखा है। बेसिकली आईपी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास सिस्टम ए है, लेट्स से आई हैव टू सिस्टम और मोर देन टू सिस्टम यू कैन कंसीडर, मेरे पास बहुत सारे सिस्टम है, यू कैन से, लेट मी जस्ट शो यू। लेट्स से मेरे पास ये एक सिस्टम है, लेट्स से सिस्टम वन, लेट्स से देयर इज अ सिस्टम टू। अभी ये दोनों ही एक ही नेट स्विच से कनेक्टेड है। लेट्स से इस सिस्टम वन की आईपी मैंने दे दिया 10.1, इसकी भी आईपी मैं दे रहा हूँ 10.2। जब इसकी आईपी 10.1 दे रहा हूँ, इसकी आईपी 10.2 दे रहा हूँ, देयर इज नो इशू, सब कुछ ओके चलेगा, कोई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस सिस्टम की भी आईपी मैं 10.1 कर दूं, देन यहाँ पे क्या है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट है, आपको स्विच ऑटोमेटिक एरर देना शुरू कर देगा कि मेरी जो मैक एड्रेस में लैन कर रहा हूँ ना, ये दो इंटरफेस से लैन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो एरर जो देगा, एरर की बेसिकली मीनिंग क्या होगा, वो आपको एरर कोड जो जनरेट करेगा, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस आपको स्विच बताएगा, और कम्युनिकेशन दोनों के बीच नहीं हो पाएगा। सो दिस इज नथिंग बट आईपी कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो आईपी कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली डिटेक्ट कौन करता है, ग्रेशियस आर्प। ओके। ये जो पूरी की पूरी ये जो ग्रेशियस आर्प है ना, ग्रेशियस आर्प का प्राइमरी गोल यही है, कभी भी नेटवर्क में आपके आईपी कॉन्फ्लिक्ट होगा, सो उसे डिटेक्ट कौन करेगा, ग्रेशियस आर्प ही डिटेक्ट कर पाएगा। ओके। और उसके बावजूद भी क्या रहती है, नेटवर्क को सिंक्रोनाइज रखना, रिडंडेंसी बेसिकली प्रोवाइड करना, फेलोवर अचीव करना, या फिर माइग्रेशन वर्चुअल वीएम्स को माइग्रेशन करना। इन दैट केस ग्रेशियस आर्प आपके बेसिकली काम पे आता है, रोल पे आती है। और ग्रेशियस आर्प अभी मैं कहूंगा इतना ज्यादा डीप में आप मत ही जाओ ग्रेशियस आर्प में, क्योंकि ग्रेशियस आर्प के बिहाफ में हमारे पास लैब्स भी है फ्यूचर में, जिसके ऊपर हम वर्चुअल राउटर बनाएंगे, वर्चुअल आईपीस को क्रिएट करेंगे, एंड वहां पे मैं आपको बताऊंगा ग्रेशियस आर्प बेसिकली कैसा दिखता है। ओके। देखो ग्रेशियस आर्प की मीन वाइल मैं आपको थोड़ी बहुत कहानी भी बता देता हूँ, कॉमन यूज केसेस अगर ग्रेशियस आर्प के बारे में बताऊं, हाई अवेलेबिलिटी, व्हेन एन एक्टिव प्राइमरी डिवाइस लाइक फायरवॉल और राउटर फेल, द बैकअप डिवाइस टेक ओवर आईपी एड्रेस एंड ग्रेशियस आर्प। बेसिकली क्या होती है, जो प्रोडक्शन नेटवर्क होती है, जो बड़े बड़े मैनेजमेंट नेटवर्क होती है, उसके अंदर क्या रहती है, मेरे पास जो भी डिवाइस बड़े बड़े इंडस्ट्री में चलते हैं और आपके डेटा सेंटर में चलते हैं, वहां पे एक डिवाइस नहीं चलता, मिनिमम से मिनिमम दो डिवाइस चलते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये एक राउटर ये है, दूसरा एक राउटर ये है। ओके। दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे और दोनों एक कोर स्विच से कनेक्टेड होंगे, दिस इज योर कोर स्विच, ऐसे कुछ कनेक्टेड होंगे। ओके। कभी लेट्स से दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, कभी भी प्राइमरी राउटर आपका डाउन हो गया, सो ग्रेसियस आर्प के मदद से सेकेंडरी को पता चल जाएगा प्राइमरी मेरी डाउन हुआ है। ओके। देयर इज सम कॉन्सेप्ट लाइक एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलवीपी, बेसिकली हम उसे देखेंगे फ्यूचर में, अभी उसके ऊपर मत जाओ। बेसिकली इतना याद रखो, कभी भी मेरी प्राइमरी डाउन हो जाएगा या फिर मेरी सेकेंडरी डाउन हो जाएगा, मुझे प्राइमरी को या फिर सेकेंडरी को पता कैसे चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प की मदद से अगर आपकी एक प्राइमरी डिवाइस फेल हो रहा है, तो सेकेंडरी डिवाइस को कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्रेशियस आर्प। ओके। सेकंड क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स, व्हेन वीएम मूव फ्रॉम न्यू होस्ट, जैसे आपने कोई वीएम मूव कर रहे हो फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, या फिर वन हाइपरवाइजर टू अनदर हाइपरवाइजर, वहां पे भी आपकी क्या रोल निभाता है, ग्रेशियस आर्प आपका रोल निभाता है। ओके। बेसिकली कभी भी आप देखना, वीएम माइग्रेट करने, वीएम जब भी आपका माइग्रेट होता है, वीएम माइग्रेट इन द सेंस, आपकी मशीन चल रहा होगा लेकिन आप उसे एक फिजिकल मशीन से निकाल के दूसरी फिजिकल मशीन में डालोगे, उसे कहते हैं हॉट माइग्रेशन। ओके। वो बेसिकली सर्वर की टर्मिनोलॉजी है, हॉट माइग्रेशन। बेसिकली आपकी डिवाइस लाइव है, पिंग भी आपको, रीचेबिलिटी भी मिल रहा होगा, बट स्टिल यू आर मूविंग द होस्ट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, और वन सर्वर टू अनदर सर्वर। और वहां पे सबसे ज्यादा रोल किसकी रहती है, ग्रेशियस आर्प की, नेटवर्क को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ओके। देन आईपी कॉन्फ्लिक्ट, ये डिवाइस सेंड ग्रेशियस आर्प टू सी इफ अदर डिवाइस रेस्पॉन्ड और नॉट। बेसिकली ग्रेशियस आर्प की मदद से बेसिकली पूरी नेटवर्क में ग्रेशियस आर्प आपका क्या चेक करता रहता है कि ये जो आईपी एड्रेस अभी फिलहाल में चल रहे हैं वो कोई दूसरी डिवाइस में नहीं चल रहे हैं ना, नहीं या चल रहे हैं, वो बेसिकली कैसे डिटेक्ट होते हैं, बाय द ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प 24/7 लगा ही रहता है इसी काम में, वो चेक करता रहता है कोई आईपी एड्रेस मेरी डुप्लीकेट तो नहीं दे रहा है कोई। नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन, आफ्टर ए डिवाइस बूट अप,
It interface comes online. It send gracious ARP, announce IP address, MAC address binding to the network, proactively update caches. बेसिकली ये कहाँ पे यूज होती है फायरवॉल राउटर में? लेट्स से आपके राउटर कभी डाउन हो गया, ओके, राउटर आपका डाउन हो गया, फायरवॉल आपका डाउन हो गया। सो जैसे ही आप फायरवॉल को फिर से स्टार्ट करोगे, फिर से ऑन करोगे, जैसे ही वो ऑन होगा देखना पूरी इंटरफेस में लाइट पहले जलेगी। सो जैसे ही वो लाइट जलेगा, दैट्स मीन्स ग्रेशियस आर्प क्या करेगा, सारे इंटरफेस को बताएगा कि मैं ऑन हो गया हूँ, मेरे मैक एड्रेस एक्टिव हो गए हैं, मेरी आईपी एड्रेस एक्टिव हो गए हैं। बेसिकली वो कौन बताता है? बाय द ग्रेशियस आर्प। और ग्रेशियस आर्प बेसिकली नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन में काम आता है। नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस, अगर आपने कभी देखा होगा स्विच बूट जब होता है, अगर आपने देखा होगा सही से स्विच कैसे बूट होता है, पहले कुछ टाइम लेता है, आवाज करता है, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है, आफ्टर दैट क्या करता है, उसके सारे पोर्ट में लाइट जलते हैं, एट ए टाइम सारे पोर्ट में लाइट जलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, फिर नॉर्मल लाइट जलने शुरू हो जाएंगे। अर्लियर जो लाइट जलेगा दिस इज इन ऑरेंज कलर लाइट, जिसे टेक्निकली हम एम्बर लाइट कहते हैं। सो वो जो एम्बर लाइट जलता है उसमें बेसिकली ग्रेशियस आर्प क्या बताता है पूरी नेटवर्क में, कि ये जो डिवाइस था जो डाउन हो गया था, ये अभी ऑनलाइन आ गया, इसके सारे इंटरफेस ऑनलाइन आ गए, इस सारे इंटरफेस में जितने भी मैक एड्रेस है सारे ऑनलाइन आ गए। वो कौन बताता है आपको? ग्रेसिस आरपी बताता है। उसके बाद रिडंडेंसी। देखो रिडंडेंसी में नॉर्मली क्या होती है, ये बेसिकली थोड़ी सी हाई टर्मिनोलॉजी रिडंडेंसी वाली है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक ही आईपी एड्रेस मल्टीपल सिस्टम में भी दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक आईपी कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उस वहां पे आईपी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं। और दिस इज ऑल्सो अचीव बाय ग्रेसियस आर। गॉट इट मंजित? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है ना, शेयरिंग सिंगल आईपी एड्रेस ग्रेशियस अलाउ। बेसिकली जी आर्प जो है और एक से ग्रेशियस आर्प जो है वो आपको अलाउ भी करता है कि एक ही आईपी एड्रेस मल्टीपल होस्ट में भी आप दे सकते हो, वो चीजें आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर के कुछ कंसेप्ट होते हैं। और क्लस्टर की जो कंसेप्ट होते हैं इट्स नॉट लाइक सर्वर तक ही सीमित है। अभी की जो मॉडर्न नेटवर्किंग है, यहाँ पे आप राउटर को स्विचेस को भी क्लस्टर में डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद रिवर्स आर्प। रिवर्स आर्प नॉर्मली हमने देखा था, जैसे मेरे पास आईपी एड्रेस होता है। यस मंजित? सर जैसे हमारे पास दो कोर स्विच लगे हैं, तो वो क्या हाँ हाँ, एक ही क्लस्टर में होगा, उनका आईपी वगैरह सब सेम होगा क्या? ऐसा ऐसा यस कहना चाह रहे यस, हो आप? आपने देखा होगा, आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल वैसे तो बताया। लेट्स से आपके देखा होगा आपके लेट्स से एनवायरनमेंट में दो कोर स्विच है, दिस इज कोर वन, दिस इज कोर टू। ओके, इन दोनों की नॉर्मल फिजिकल आईपी एड्रेस अलग अलग होंगे, लाइक इसकी है 90.1, इसकी है 90.2। इन दोनों के फिजिकल आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों की एक वर्चुअल आईपी भी होगा, which is let's say 19.3. This let's say for an example, let make it very good IP address. Let's say इसकी है 10.10, इसकी है 10.20। इन दोनों की एक IP एड्रेस होगा which is 10.1। और 10.1 कभी भी डाउन नहीं जाएगा जब तक दोनों स्विच आपके डाउन नहीं जा रहे। एक स्विच डाउन जा रहा है तभी ये ऑनलाइन आएगा, दूसरा स्विच डाउन जा रहा है तभी ये ऑनलाइन आएगा। लेकिन जब कभी आपके दोनों स्विच डाउन हो जाएगा देन 10.1 भी डाउन हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर क्लस्टर आईपी। ठीक है। ओके, इसको हम कैसे अचीव ठीक है करते सर। हैं वो आगे देखेंगे, इसके ऊपर ज्यादा मत जाओ, लेकिन ये टाइप समझो कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो। ओके, लाइक आफ्टर दैट वी हैव रिवर्स आर्क। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मल आर्क का क्या काम होता है। नॉर्मल आर्क का मेरा काम होता है, मेरे पास आईपी एड्रेस है, आई हैव द आईपी एड्रेस, आई हैव द आईपी एड्रेस बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द मैक एड्रेस। मेरे पास आईपी एड्रेस है, मैं मैक एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, दैट इज द एक्चुअल यूज ऑफ आर्क। ओके, बट रिवर्स आर्क में क्या होता है, मेरे पास मैक एड्रेस है बट आई एम लुकिंग माई आईपी एड्रेस। मेरे पास मेरी मैक एड्रेस तो है बट मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी आईपी एड्रेस को ढूंढ रहा हूँ। अभी आप मुझे पूछ सकते हो सर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जहां पे सिस्टम को अपनी आईपी एड्रेस ही नहीं पता। देखो ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, रिवर्स आप हाल फिलहाल में अभी नहीं चल रहा। पहले की जो टेक्नोलॉजीज थी वहां पे क्या था, आपकी सिस्टम में डिस्क लेक सिस्टम था, जिसके अंदर डिस्क था ही नहीं। मतलब कोई एप्लीकेशन कोई उसके अंदर जो पहले के जमाने में सिस्टम थे ना, उसके अंदर कोई डिस्क नहीं होते नहीं थे। तो डिस्क नहीं होते थे देन वो आईपी एड्रेस को स्टोर भी नहीं कर पा रहा था। सो इसलिए हमने एक सेंट्रलाइज सर्वर बनाया था जिसके अंदर हमने बाइंडिंग करके रखते थे, ये मेरी सिस्टम की मैक एड्रेस है, उसके बिहाफ में मेरी आईपी एड्रेस है। सो जब कभी सिस्टम को उसकी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ता था, वो क्या करता था, रिवर्स आर्क की रिक्वेस्ट भेजता था टूवर्ड्स योर सर्वर। सर्वर के पास जैसे ही पहुंचता था, सर्वर चेक करता था, अच्छा ये मैक एड्रेस है एंड दिस इज योर आईपी एड्रेस, ऐसे बेसिकली वो चेक करते रहता था। नॉर्मली आपकी अभी की टेक्नोलॉजी में और अभी की मॉडर्न इंजीनियरिंग में हमारे पास रिवर्स आर्क नहीं है, क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी के अभी की इंडस्ट्री में हमारे पास क्या है, डीएससीपी है।
डीएससीपी क्या करता है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट रेडी रखता है और हमें सर्व कर देता है। और अभी की जो सिस्टम्स हैं, हमारे पास कैशे मेमोरी होती है, राम्स होते हैं और हार्ड डिस्क होती है, सब कुछ होती है। आईपी असाइन करने के लिए वहां पे प्रॉम्प्ट होती है, सब कुछ होती है। लेकिन पहले की जो टेक्नोलॉजी थी वहां पे इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, तो वहां पे हमारे पास क्या था, रिवर्स आर्प था। रिवर्स आर्प के मतलब जैसे हमने डीएनएस में पढ़ा था, डीएनएस का नॉर्मली काम क्या था, मेरे पास डोमेन नेम है, मेरे पास डोमेन है एंड आई एम लुकिंग फॉर द आईपी एड्रेस। लेकिन हमारे पास रिवर्स डीएनएस भी था, जिसके अंदर मेरे पास आईपी एड्रेस था और मैं डोमेन को ढूंढ रहा था। सो लाइक द सेम, अगर मैं नॉर्मल आर्प की बात करूंगा, दैट्स मीन्स मेरे पास आईपी है, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स योर मैक एड्रेस। लेकिन अगर मैं बात करूं रिवर्स आर्प की, रिवर्स आर्प नॉर्मली किस लिए यूज होता है, मेरे पास मैक एड्रेस है बट आई एम नॉट हैविंग द आईपी एड्रेस, आई एम लुकिंग फॉर द आईपी एड्रेस। सो वहां पे बेसिकली आपका रिवर्स आर्प की यूज किया जाता है। गॉट इट मंजित? यस सर, क्लियर है। ओके। सो ये बेसिकली आर की चार टाइप है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है माइंड में। कभी भी आपको इंटरव्यूअर आर की क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्टली उसे ये मत बोलो कि सर आर्प होता है आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस मैप करने के लिए, नहीं। इट इज नॉट द एक्चुअल वर्ड और एक्चुअल डेफिनेशन। आर्प क्या होती है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है व्हिच इज वर्किंग ऑन डाटा लिंक लेयर। पहले उसे बताओ आर्प होता क्या है, उसके बाद कौन सी लेयर में काम करता है वो बताओ। सो जब कभी आपको आर्प कोई पूछ रहा है व्हाट इज आर्प, तो आप सिंपल सी बताओ, ARP stand for Address Resolution Protocol. It is working on data link layer and it have floor flavors. इसके अंदर मेरे पास कितने फ्लेवर है, we have floor flavors, मेरे पास चार फ्लेवर है। क्या क्या है, proxy ARP, gracious ARP, reverse ARP and inverse ARP. In incoming session we are discuss inverse ARP actually. Okay. proxy ARP normally कहाँ पे होता है, whenever my broadcast traffic is blocked, like in routing section my ARP broadcast is blocked, in that case we are using proxy ARP to reach the destination. gracious ARP basically कहाँ पे यूज होता है, like failover में, क्लस्टर मूविंग में, शेयर्ड आईपी में, और सबसे बड़ी चीज ग्रेसियस आर्प आपकी कहाँ पे यूज होती है, आईपी कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। रिवर्स आर्प नॉट इन नाउ इन ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली ऑब्सोलेट हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन पहले के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता था जहां पे आपकी डिस्क लेस सिस्टम था, जहां पे आपके सिस्टम के अंदर डिस्क नहीं था और सिस्टम को उसकी आईपी एड्रेस याद ही नहीं होते थे। उस टाइम में बेसिकली हम एक सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर बनाते हैं, उसके अंदर हम मैक टू आईपी को बाइंड करते हैं। उस टाइम जो ट्रैफिक जनरेट होता था सिस्टम से, दिस इज रिवर्स आर्प। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके पास आपकी मैक एड्रेस है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड योर आईपी एड्रेस। So these are the three flavors of ARP you can say. In upcoming session we are discuss the inverse ARP actually. Got it Manjit? यस सर। Having any query till now? नो सर, आज के टॉपिक से तो नहीं है क्वेरी। सर एक Okay. एसएसएच में मेरे को एक क्वेरी थी। Yes, yes, पूछो। उसमें सर आपने एक बताया था ना, अगर हमने कोई ऐसा यूजर बनाना हो जिसको